اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں وزیر صلاح الدین سلطان کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ گمشتگن شہزادے اسماعیل کو اٹھائے ان کے پاس ٹہلتے ہوئے کہتا ہے، اللہ ملک اسماعیل کو لمبی عمر عطا فرمائی، اب سے ہمارے سلطان یہ ہیں اور صلاح الدین شامی نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں دو سلطانوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تم ہم سے پہلے شام کیسے پہنچے؟ ملک اسماعیل کا تمہاری گود میں کیا کام ہے؟ تو گمشتگن کہتا ہے، جب تم ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے یہ کام مجھ پہ آن پڑا، اللہ کی مدد سے میں اپنے ملک کو ڈاکوں کے ہاتھوں سے بچانے میں کامیاب رہا۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب گمشتگن شہزادے کو اٹھا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ اس خیال کے بعد وہ کہتے ہیں، نہیں، شہزادے کو اغوا کرنے والے تم ہی تھے، تم نے ہمارے لیے جال بچھایا۔ گمشتگن کہتا ہے، جبکہ ہمارے سلطان کا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، مجھ پہ بہتان لگانے کی جرات نہ کرو۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں امانت کی حفاظت احتیاط سے کرنی چاہیے، تم نے ہمارے سلطان کو ان کے آخری لمحات میں بڑی مایوسی سے دوچار کیا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، ہمارے خلاف یہ سازش رچانے والے تم ہی تھے، امیر یاروکی کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پہ ہے۔ یہ سن کر وزیر اعماد اور اسفیانی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وزیر اعماد پوچھتے ہیں، امیر یاروکی کیا وہ شہید ہو گئے؟ گمشتگن کہتا ہے، صلاح الدین تم نے سارا کام برباد کر دیا، اپنا جرم مجھ پہ ڈال کر اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وزیر صلاح الدین کی آنکھیں غصے اور غم سے بھر آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں، شکر کرو کہ ہم سلطان کی میت کے سامنے ہیں، کیونکہ میں تمہارے جتنا بے ادب نہیں ہوں جو ان کی میت کے سامنے بھی بحث کر رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ بعد میں نپٹیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کی میت کو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ قلعے میں بزنطینی سپاہی بھورو کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ پیچھے سے قلعے کا کمانڈر سائرہ کے ساتھ زندان میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے، اعلیٰ قلعہ اور اس کے سپاہی تمہارے ماتحت ہیں سائرہ، تمہارے بابا میرے قریبی دوست تھے۔ سائرہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بھورو سائرہ سے کہتا ہے، تم غلطی پہ ہو سائرہ، اگر تم اپنے باپ کی طرح شیطان کے ساتھ تعاون جاری رکھتی ہو تو آخر میں جلنے والی تم ہی ہوگی۔ سائرہ کہتی ہے، اگر غلطی کرنے والی میں ہوں تو قید ہونے والے تم کیوں ہو بھورو؟ بتاؤ مجھے۔ بھورو سے کہتا ہے، اگر ایسا ہے تو مزید وقت ضائع نہ کرو، اپنی تلوار نکالو اور جو کرنا ہے کر ڈالو۔ سائرہ کہتی ہے، اپنے شکار کے ساتھ کھیلے بغیر، اس کی آنکھوں کی بے بسی کو دیکھے بغیر؟ بھورو کہتا ہے، میری نظروں میں جہاں تم قیدی کو تلاش کرو گی وہاں تمہیں صرف بہادری ہی ملے گی۔ جواباً سائرہ کہتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، تمہارے چاہنے والوں کو تمہاری بہادری کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمانڈر اور سپاہیوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بھورو چلاتے ہوئے کہتا ہے، تراب اور علی کہاں ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بتاؤ میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں یہ قلعہ تمہارے سروں پہ گرا دوں گا۔ مگر باہر سے اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ بھورو پلٹتا ہے تو قریبی میں ایک شخص لیٹا ہوتا ہے۔ کرک قلعے میں میلا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب وزیر صلاح الدین نے اسے انکار کیا تھا۔ اس خیال کے بعد میلا غصے سے کہتی ہے، تم میرے غرور کو روندنے کی قیمت ادا کرو گے صلاح الدین، جلد یا بدیر۔ اس لمحے چاتیون وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری موجودگی کے ساتھ پتھر اور دیواریں پھر سے آرامدہ گھر بن گئی ہیں، لیکن کچھ ہے جس کی وجہ سے میں متجسس ہوں۔ تمہاری سوچ کو بدلنے والی، قاعدہ کو چھوڑنے والی اور میری زندگی بچانے کو ممکن بنانے والی چیز کیا ہے؟ تو میلا کہتی ہے، اس بات کا یقین کہ مجھے تم اب مزید نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ایک کنس کا ٹھکانہ اس کا قلعہ ہی ہونا چاہیے۔ بادشاہ مارلیک مر گیا ہے، اب سے بالکل ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ہم اس لیے ماضی کو پیچھے چھوڑیں گے اور مستقبل کی طرف دیکھیں گے۔ چاتیون کہتا ہے، یقیناً میری کنس، یقیناً۔ یہ کہتے ساتھ وہ میلا کی جانب بڑھتا ہے تو میلا اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ میں واقعی تمہاری وفادار بیوی بنوں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تم نے شادی سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، یاد کرو۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، صلاح الدین کو زندہ یا مردہ میرے پاس لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتیون مسکرا دیتا ہے۔ کچھ کے چرچ میں ولیم اور سبیلا بہت زیادہ پریشان اور غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ سبیلا کہتی ہے، پیارے بابا جان، آپ کی موت بہت نامناسب وقت پر آئی۔ ولیم اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، تمام اموات کی طرح شہزادی۔ سبیلا کہتی ہے، ولیم میں بہت درد میں ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اندر خون بہ رہا ہے۔ ولیم کہتا ہے، ہمارے بادشاہ کی موت ایک کھلے اور کبھی بند نہ ہونے والے زخم کی طرح رہے گی، لیکن ہم اس زخم کے باوجود بھی مضبوط کھڑے ہونے پہ مجبور ہیں۔ سبیلا پلٹتی ہے تو ولیم مزید کہتا ہے، کچھ کو محفوظ بناتے ہوئے ہمیں ان کا ماتم جینا ہے، ہمیں ان کے ورثے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے بالن وہاں پہ آتا ہے۔ سبیلا ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے بابا مر چکے ہیں۔ تو بالن اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جانتا ہوں سبیلا، جانتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دو دشمن ریاستوں کے بادشاہ اور سلطان ایک ہی وقت میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ولیم ایک دم سے پوچھتا ہے، کیا سلطان نور الدین بھی فوت ہو گئے ہیں؟ بالن کے ہاں میں سارے لانے پر ولیم مزید پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، میرے خداوند، دور بدل رہا ہے، ایسی چیزیں بے مطلب نہیں ہو رہی، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ماریا زندان میں قید لاڑگائی کے پاس آتی ہے۔ لاڑگائی اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اس تکلیف دہ دن میں آپ کو یہاں لانے والی چیز کیا ہے؟ میں اس کے لیے متجسس ہوں ملکہ۔ جواب میں ماریا کہتی ہے، ابھی پھانسی سے بچنے والے شخص کو دیکھے تو تم بہت متجسس ہو۔ لاڑگائی کہتا ہے، آپ اس خاتون کی طرح بالکل بھی افسردہ دکھائی نہیں دے رہی جس کا شوہر فوت ہوا ہے، مزید یہ کہ چونکہ بادشاہ مر چکا ہے تو اس لیے آپ کے ملکہ کے لقب کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ماریا کہتی ہے، مت بولنا لاڑگائی، بادشاہ مرتے ہیں اور بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ وارث بالڈون ہے، جس کے حکیم کو مارنے کی کوشش میں نے کی تاکہ وہ درد سے مر سکے، وہ بالڈون۔ تم دیکھ سکتے ہو لاڑگائی، میری طاقت میرے عنوانات سے مبرا ہے اور تمہارا مستقبل میرے ہونٹوں کے درمیان ہے، اپنا دماغ استعمال کرو، کچھ کس نئے دور میں سیدھی طرف کھڑے ہو جاؤ، ورنہ میرے ہونٹوں کی مہر ٹوٹ جائے گی، تب کیا ہوگا اس کے بارے میں اب تم سوچو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ماریا چلی جاتی ہے۔ ادھر کرتگن وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے، یقینی طور پہ اس بدماش گمشتگن کی کوئی واضح سازش ہے، ایک تو ہم پہ حملہ کر رہا ہے اور اوپر سے ہمیں ہی مجرم ٹھہرا رہا ہے۔ خلیل کہتا ہے، کیا اس کے بعد بھی ہم ملک اسماعیل کو جان بوجھ کر اس کے پاس چھوڑیں گے؟ کرتگن کہتا ہے، ہاں خلیل ٹھیک کہہ رہا ہے، چلیں جا کر اس کا سامنا کرتے ہیں، میں اس کا حقیقی ماموں ہوں اور آپ اس کے منہ بولے بھائی ہیں، ہمارے یہاں ہوتے ہوئے اس کا کیا دخل ہے؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، میں کسی کو یہ کہنے نہیں دوں گا کہ جنازہ ختم ہونے سے پہلے ان کی لڑائی ہو گئی ہے، بے فکر رہو، میں اپنے سلطان کی یاد اور ان کی امانت دونوں کی حفاظت کروں گا۔ اگلے لمحے وہاں پہ قاضی فاضل آتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے سلطان ہم سب کے بابا فوت ہو گئے ہیں، میری تعزیت قبول کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی قاضی فاضل آگے بڑھتے ہیں اور وزیر صلاح الدین کو گلے لگا لیتے ہیں۔ پھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، ہمارا غصہ ہمارے غم میں شامل ہو گیا ہے، ہمارا انجام اچھا ہو۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، ہم جب کہ اپنے سلطان کے غم میں جل رہے ہیں، یاروکی کی جدائی کا درد بھی ہمیں
زخمی کر رہا ہے، یہ غداری کس نے کی؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں گمشتگن نے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاضی فاضل پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بزرگ وہاں پہ آ کر کہتا ہے میرے سلطان بادشاہ مارلیک مر گیا ہے۔ یہ سن کر سب گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے کمرے میں شہزادے کو اٹھائے ہوئے گمشتگن کہتا ہے تم ابھی بچے ہو، لیکن تمہارے پاس کئی سرزمینوں پر حکومت کرنے کی میراث موجود ہے۔ تم نے مجھے لازوال سلطنت مہیا کی ہے ننھے شہزادے، میں تمہارا کتنا مشکور ہوں تم نہیں جانتے۔ اس لیے میں اس کا سپاہی کرا جا کر کہتا ہے موصل کے منتظم امیر قائماز آئے ہیں۔ خادمہ شہزادہ لے کر چلی جاتی ہے اور اگلے لمحے امیر قائماز وہاں پہ آتا ہے اور گمشتگن سے کہتا ہے سلطان کی موت کی خبر سے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، ان کی روح شاد ہو اور ان کا مقام جنت الفردوس ہو۔ تو گمشتگن کہتا ہے ہمارے سلطان اچانک سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے دلوں کو گہرا صدمہ پہنچا ہے، لیکن زندگی چلتی رہتی ہے، ان کی اس بے وقت موت نے ہمارے کندھوں پر نیا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مبارک ہو امیر قائماز، مبارک ہو۔ یہ سن کر قائماز بھی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور وزیر صلاح الدین سلطان کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھتے ہوئے سلطان کے ساتھ آخری ملاقات کو یاد کرتے ہیں جہاں پہ سلطان قدس اور مسجد الاقصی کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس خیال کے بعد وزیر صلاح الدین غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس اللہ کی قسم ہے، مجھے آپ نے جو کچھ سکھایا میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ جس راستے کو ہم نے ایک ساتھ شروع کیا اور اس پہ چلے میں اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسلام کے لیے اٹھائے گئے اس پرچم کو ہرگز نہیں گراؤں گا۔ ہمیشہ سے جو ہمارا ہے اس قدس کو لینے کے لیے آپ سلطان نور الدین کے بنائے گئے منبر کو مسجد الاقصی میں نصب کرنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ جب تک دنیا کا وجود ہے قدس ہمارا ہے اور ہم قدس کے ہیں۔ کیرک میں میلا چاتریون کو ہار پہناتے ہوئے کہتی ہے بادشاہ مارلیک کی موت قدس کی لہر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی۔ جو ہمیں چاتریون کہتا ہے میری قوم جو ہونا ہے واضح ہے، آخر میں تخت پہ بالڈون ہی بیٹھے گا۔ میلا اسی چوغا پہناتے ہوئے کہتی ہے ملکہ ماریا بالڈون کو اپنے شکنجے میں کسنا چاہے گی، مگر ولیم ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ سبیلا اور بالین کو اپنے ساتھ کر لے گا۔ اور یہ بات مت بولو کہ بالین صلاح الدین کا دوست ہے، اس کا اقتدار سنبھالنا صلاح الدین کے مفاد میں ہوگا۔ چاتریون کہتا ہے لیکن ملکہ ماریا اور لاڈگاہ صلاح الدین کے دشمن ہیں۔ میلا اسے کہتی ہے تمہارا کام صرف قدس میں صلاح الدین کے دشمنوں کو مضبوط کرنا ہے۔ چاتریون سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے فکر مت کرو کونس، ایسا ہی ہوگا۔ قدس میں بستر پہ موجود بالڈون غمگین ہوتے ہوئے ماریا سے پوچھتا ہے میرے بابا کیسے مرے؟ تو ماریا اسے کہتی ہے میں آپ کا دکھ سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ کو ایک بادشاہ کی طرح مضبوط ہونا ہوگا۔ بالڈون کہتا ہے میں بادشاہ نہیں ہوں۔ تو ماریا کہتی ہے تخت کے وارث آپ ہیں، آپ اپنے بابا کی جگہ قدس کے بادشاہ بنیں گے۔ لوگ کسی ایسے بادشاہ کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہیں گے جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ بالڈون کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس میرے بابا چاہیے۔ ماریا اسے کہتی ہے میرا یقین کرو بالڈون، تمہارے بابا تمہارے مضبوط کھڑے ہونے اور آپ ان کے تخت کی حفاظت کریں یہ چاہتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاڈگاہ قید خانے میں ہیں اور وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر۔ بالڈون کہتا ہے یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے مجھے نہیں پتا۔ ماریا کہتی ہے آپ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ بادشاہ سب کچھ جان کر سب کچھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جن پر وہ اعتماد کر سکیں۔ مجھ پر بھروسہ کریں، لاڈگاہ کو آپ کے لیے اور قدس کے مستقبل کے لیے اس قید خانے سے نکالیں۔ بالڈون کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور ماریا اپنی چالیں اس کے دماغ میں اتارتے ہی شام میں گمشتگن امیر قائماز سے کہتا ہے نئے بوجھ نے مجھے اور اس بچے کو ان منفرد زمینوں پر حکومت کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، اس نے وکالت میرے ہاتھوں میں چھوڑی ہے۔ تو قائماز کہتا ہے تم ہمیشہ لالچی تھے گمشتگن، ہمیشہ، ویسے ہمارے درمیان اختلافات کی وجہ بھی یہی تھی۔ تو گمشتگن کہتا ہے فی الحال چلو اسے ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، اہم بات شام کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہے، اس معاملے میں موصل اور البیل کی حیثیت کیا ہے؟ تو قائماز کہتا ہے میں یہاں ملک میادود کے بیٹوں سے لی گئی اجازت کے ساتھ آیا ہوں، وہ بھی صلاح الدین کے ایک ایوبی ہونے کے ناطے زنگ ریاست کے محافظ بننے پہ بے سکون ہے۔ یہ سن کر گمشتگن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے لیے واضح حمایت کا ثبوت ہے۔ تو قائماز کہتا ہے گمشتگن ابھی کے لیے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہمیں اب صلاح الدین کے خلاف قوت بنانی چاہیے، لیکن تم اسے جانتے ہو وہ شام کو تمہارے لیے نہیں چھوڑے گا۔ گمشتگن کہتا ہے صلاح الدین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آخر میں نائب کون ہے اس کا تعین سب کی رائے سے ہوگا، تمام کی رائے شامل ہوگی۔ صلاح الدین اتنے بڑے دیوان کی مخالفت کر کے مملکت کے سارے امراء کو اپنے مخالف نہیں کرنا چاہے گا۔ تو قائماز کہتا ہے اچھا تو زیادہ تر امراء کی رائے صلاح الدین کی جانب اشارہ کرتی ہے، تب کیا ہوگا؟ گمشتگن کہتا ہے صورتحال وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہمارے پاس یقینی طور پہ اس سے نمٹنے کے لیے ایک چال ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین عمر ملا اور اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ قراتگن ان سے کہتا ہے دیکھیں میرے سلطان آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کیا سلطان نور الدین نے میرے بانجے کو آپ کے حوالے نہیں کیا؟ حرکت میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں حق اور باطل کو سورج کی طرح واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کچھ ہوا اسے لوگوں کے سامنے عیاں کرنا ضروری ہے۔ امیر اسفیاری کہتے ہیں ہم بہت دیر کر دیں گے، آپ کا بآواز بلند وکالت کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن جب ہمارے دکھ تازہ ہیں۔ عمر ملا ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں یہ بالکل بھی تخت کی محبت نہیں ہے صلاح الدین، آپ کی خواہش کا مطلب سلطان نور الدین کی میراث کو محفوظ رکھنا ہے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ ساری طاقت کسی لالچی آدمی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں یہ ہمارے لیے تباہی ہوگی۔ پھر عماد وزیر کہتے ہیں میرے سلطان عالم اسلام کی نظریں ہم پر ہیں، اس امت کا آپ کے علاوہ کوئی حامی نہیں ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اپنے سلطان کی میراث اور ان کے مقصد کو یقیناً بے آسا نہیں چھوڑنے والا، اپنی ذمہ داری سے نظریں نہیں چرا رہا، بلکہ صحیح وقت کے انتظار میں ہوں، چونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انتظار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہی کرنا ہے جو ضروری ہے۔ قاضی فاضل بغداد کے لیے روانہ ہوں، میں نیابت کا طالب ہوں، یہ محترم خلیفہ کو بتائیں، ان کی جانب سے بھیجا گیا فرمان ہمارے کام کو آسان کر دے گا۔ دوسری طرف بورو زندان کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ناکام ہونے پر وہ لیٹے ہوئے شخص کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے ایسے سو رہا ہے جیسے مر گیا ہو۔ تو وہ شخص کہتا ہے تم سے پہلے بھی فرار ہونے کی کوشش کرنے والے گزرے ہیں، تم زندہ باہر نہیں نکلو گے، بیکار کوشش نہ کرو۔ بورو سے کہتا ہے اپنی نیند کو دیکھو، تم غالباً اپنی زندگی سے تھک گئے ہو، میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، بیڑیوں نے خون کو چکھ لیا ہے، یا تو ماروں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو بورو پوچھتا ہے کیا مجھے تم جانتے ہو؟ وہ شخص خوش ہوتے ہوئے ایک دم سے اٹھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں تمہاری ماں اور باپ سے بھی زیادہ جانتا ہوں، پاگل بیڑیے۔ یہ سن کر بورو خوش ہوتے ہوئے پلٹتا ہے اور کہتا ہے کراکوش یہ تو تم ہو۔ اگلے لمحے بورو اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ بورو کہتا ہے میں نے آخرکار تمہیں ڈھونڈ لیا، تمہارے جیسے مردوں کی طرح سونے والے دنیا میں ہے ہی کتنے؟
यहाँ इतनी क़यामत बर्पा हुई और मैं तुम्हें बेदार भी नहीं कर सका। कराकोश कहता है, मैं क्या करूँ पागल भेड़िए, मैं थोड़ा खाता हूँ थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन मैं सो थोड़ा भी नहीं पाता, सिर्फ मुझे इसका हल नहीं मिल सका। बोरो से फिर से गले लगाते हुए कहता है, तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। बताओ गुगबरो कहाँ है, हमारा भाई कहाँ है। तो कराकोश नजरें चुरा लेता है। कुछ में विलियम सेबिला और बालिन से कहता है, कुछ के मुस्तकबिल के लिए उठाया जाने वाला सबसे अहम कदम, तुम्हें अपनी शादी को जल्द से जल्द मुकम्मल करना होगा। बालिन उससे कहता है, जबकि बादशाह को दुख अभी ताज़ा है। सेबिला कहती है, मैं भी बालिन जैसा सोच रही हूँ। मगर विलियम कहता है, जैसा कि आप जानते हैं तख्त अब प्रिंस बाल्डोन का हक है, लेकिन बाल्डोन की बीमारी और अभी तक उसकी कम उम्र की वजह से इस मुश्किल जिम्मेदारी के लिए तैयार न होने को देखें तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर प्रिंस बाल्डोन अपने तख्त के हक से दस्तबरदार होता है, शहजादी के शोहर के तौर पर काउंट बालिन कुछ के नए बादशाह होंगे। ये कुछ के लिए सबसे दुरुस्त इंतखाब है। सेबिला और बालिन भी राजी नजर आते हैं, इसलिए मैं मारिया लाडगाय को लेकर वहाँ आती है। लाडगाय को देखकर सब चौंक जाते हैं। विलियम पूछता है, लाडगाय आप कैसे? तो मारिया कहती है, हमारे मुस्तकबिल के बादशाह बाल्डोन यही चाहते थे। यह सुनकर वो तीनों मजीद परेशान हो जाते हैं। शाम में शहजादे इस्माइल के नायब के लिए दीवान लगा होता है। अमीर इस्फहानी वजीर सलाउद्दीन और गुमिश तगन के दरमियान खड़े होते हुए कहते हैं, जंगी रियासत के तख्त के नए मालिक नूरुद्दीन महमूद के बेटे सुल्तान सालेह इस्माइल हैं। अल्लाह खैरियत के साथ उनकी उम्र दराज करे। हम यहाँ उनकी बलोगत की उम्र तक पहुँचने के लिए उनकी नुमाइंदगी करने वाले और उनके नाम पे हुक्म सुनाने वाले तख्त के नायब का तयन करने के लिए जमा हुए हैं। इस जिम्मेदारी के तालब और नामजद होने वालों में से एक हलब के अमीरों में से गुमिश तगन है। फिर तस्बीह निकालते हुए कहते हैं, इनके निशान चांदी की तस्बीह है। दूसरे की बात करें तो वो नामजद उम्मीदवार सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, मिस्र के सुल्तान। इनका निशान अकीक पत्थर की अंगूठी है। वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले काजी फजल दुआ मांगते हुए कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू अहले इस्लाम को मायूस ना छोड़। अमीर इस्फहानी मजीद कहते हैं, दोनों नामजद उम्मीदवारों में से तख्त के नायब के लिए जिसको चाहते हैं उस नामजद उम्मीदवार के निशान को मुंतखब करेंगे। इस इंतखाब का अमन के साथ नतीजे पे पहुंचना ये हमारे मरहूम जन्नत मकानी सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी से हमारी वफादारी है। चलें दाएं तरफ से शुरू करते हैं। ये कहते साथ ही इस्फहानी दाएं तरफ बैठते हैं और अंगूठी मुंतखब करते हैं। सामने से अमीर का इमाज तस्बीह मुंतखब करता है। उमर मल्ला अंगूठी, सामने वाला तस्बीह। वजीर अम्माद अंगूठी, सामने वाला तस्बीह। उसके बाद एक और तस्बीह। मुकाबला यहाँ तक 4-3 तक पहुँचता है। कुछ देर सोचने के बाद आखिरी अमीर अंगूठी का इंतखाब करता है और मुकाबला 4-4 से बराबर हो जाता है। यह सब देखकर अमीर इस्फहानी फिर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, 4 तस्बीहात के मुकाबले में 4 अंगूठियां, राय बराबर है। जब ऐसी सूरत हाल है तो हमारी आदत के मुताबिक तख्त के नायब का तयन करने के लिए 2 दिन बाद फिर से इंतखाब होंगे। तब तक सब सोचें और जांचें, और अगर किसी ने कुछ कहना है तो कह सकता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, रियासत और उम्मत के लिए जो भी ठीक हो वही हो। गुमिश तगन कहता है, खैर और शर में फर्क करने के लिए कुछ बदनीयती पर मबनी साजिशों का पर्दाफाश करना जरूरी है। जवाब में वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, ये कैसा इत्तेफाक है, मैं भी यही चाहता हूँ। इस्फहानी कहते हैं, ये ना भूलें कि बगैर सबूत या गवाहों के बात हमारे दीवान पर बुरा असर डालती है। तो गुमिश तगन कहता है, फिक्र ना करें मोहतरम वजीर साहब, मेरे पास एक गवाह है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे यहाँ पेश करना चाहूंगा। इजाजत मिलने पर कराजा इस शख्स को लेकर वहाँ आता है। इस्फहानी पूछते हैं, कौन है ये शख्स? गुमिश तगन कहता है, मलिक इस्माइल को बचाते वक्त जिसको मैंने कैद किया वो डाकू, इसके पास बताने के लिए आम हकाइक हैं। यह सुनकर सब उसकी जानिब देखने लग जाते हैं। कुछ में विलियम कहता है, प्रिंस बाल्डोन को अभी तक ताज नहीं पहनाया गया, ना बादशाह करार किया गया है, तो अभी फैसला नहीं किया जा सकता। मारिया कहती है, बादशाह माले के बाद तख्त का मालिक बाल्डोन है, या इस मामले में कोई एतराज है? अगर आप कुछ और मंसूबा बना रहे हैं। बाले ने उसकी बात करते हुए कहता है, हमारा वाहिद मंसूबा कुछ के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। तो लाडगाय कहता है, जिसे तुम फायदा कह रही हो वो तुम्हारे जाती मफाद से ज्यादा कुछ नहीं है। तुमने कुछ के तख्त पर बैठने के लिए शहजादी से शादी की कौन? बालेन। बालेन गुस्से से कहता है, अगर कोई अपने मफदात के लिए जीने वाला है तो वो तुम हो। दोबारा मेरे और शहजादी सबिला के बारे में कोई बात करने की कोशिश करने से पहले 1000 बार सोचना, वरना। तो लाडगाय उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, वरना क्या? मारिया कहती है, लाडगाय चलते हैं। यह सुनते साथ ही लाडगाय आगे बढ़ता है। जाते जाते मारिया विलियम से कहती है, इस कमरे में बादशाहत और उसके मुकर्रर करदा उसूलों को सबसे बेहतर तरीके से जानने वाले तुम हो। फिर प्रिंस बाल्डोन की तख्तपोशी की तकरीब में वाहिद रुकावट इसका सरकारी ऐलान है और वो भी जल्द हो जाएगा। ये कहते साथ ही मारिया लाडगाय के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद विलियम कहता है, मलिका मारिया हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें जल्द से जल्द प्रिंस बाल्डोन से बात करनी होगी, जल्द से जल्द। इधर दीवान में वो शख्स कहता है, हमारा इलाका हलब और शाम के दरमियान रास्ते पर वाक़या है, हम लूटमार की बुनियाद पर जीते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें ढूंढकर बहुत ज्यादा सोने की पेशकश की। जब मलिक इस्माइल शाम की तरफ रवाना हुए, इसने हमसे काफिले पे हमले को तरतीब देने की बात की। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, बहतान लगा रहे हो। गुमिश तगन कहता है, उसे छोड़ो और बात मुकम्मल करने दो। वो शख्स मजीद कहता है, मंसूबे के मुताबिक हमने अमीर यारुकी को कत्ल करके मलिक इस्माइल को अगवा करना था, फिर हमने बच्चे को किसी और जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करना था। वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, इस बदतमीज को मजीद बात करने की इजाजत ना दी जाए। मगर वो शख्स बोलता ही चला जाता है, हमने वजीर की बातों को हर्फ बहर्फ मुकम्मल किया, लेकिन जब हम फरार होने लगे तो अमीर गुमिश तगन हमारे सामने आ गए। बाकी आपको मालूम है, अपने ग्रोह में सिर्फ मैं जिंदा बचा हूँ। गुमिश तगन बोलते हुए कहता है, अब इस सारी बात को अगर समझा जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकसद मलिक इस्माइल को तरफ के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करके तख्त पे कब्जा करना आश्कार हो चुका है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, हम पे हमला करने वाला अमीर गुमिश तगन है। इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठे गवाह को पेश किया। यारुकी को मारने वाला भी यही है। अमीर का इमाज कहता है, गुमिश तगन हलब से है, यारुकी को जिससे इख्तलाफ था वो तुम थे। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे और यारुकी में इख्तलाफात ही क्यों ना हो, वो मेरा भाई था। अमीर गुमिश तगन ने यारुकी को मेरे साथ खड़े होने की वजह से सजा दी। गुमिश तगन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये जगह अदालत नहीं है, यहाँ कोई काजी भी नहीं है, हर कोई अपने ज़मीर से फैसला करेगा। उमर मल्ला कहते हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। सुल्तान नूरुद्दीन का एक ही मकसद था और वो कुछ को कैद से आजाद करवा कर और सलीबियों को इन सरजमीनों से निकाल बाहर करना है। राय देने वालों से मेरी आजाना दरख्वास्त है, इस विरासत की कौन हिफाजत करेगा ये सोचकर उसके मुताबिक फैसला करें। गुमिश तगन कहता है, मैं भी यही राय रखता हूँ, लेकिन मैं इस मामले में एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से आया हूँ। कुछ के फतह के ख्वाब को यकीन
यकीनी बनाने के लिए इतना अरसा हमने क्या कुछ झेला है, हमें खुलकर इस मामले पर बात करने की जरूरत है। वजीर सलाउद्दीन बहुत गुस्से में उसे एला किले के जिंदान में एक राकोश बोरो से कहता है। करतबा के मोहद अमीर से मुलाकात करके उनके सलूबियों के साथ तिजारत को कमजोर करने और इस खुफिया चाल के मकसद के साथ हमें खबर मिली है कि कुछ में भेजने के लिए वेंदक के ताजरों ने एक गार में गनीमत का बहुत बड़ा सामान छुपा रखा है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था, हम वहाँ कैद हो गए। बोरो पूछता है यह गद्दारी किसने की, किसने झूठी खबर दी? तो क्रकोश कहता है मालूमात हासिल करने वाला गुगबोरो था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाता कि उसे खबर कहाँ से मिली, मैं कैद हो गया। हमारे कैद होने के बाद मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो अजीब गरीब सूरत हाल में था, जैसे वो कैद होने की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से नाराज था। वो हमेशा कहता रहता था कि ज्यादा बात गद्दारी लाती है। खैर आपने हमें कैसे तलाश किया? बोरो कहता है जब मैंने सुना कि तुम पकड़े गए हो तो मैंने तमाम गुलामों के ताजरों से तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने जब राकीफ को तुम्हारी निशानी दी वो मुझे एक जगह ले गया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। बाद में मैंने उसका सर कलम कर दिया। निशानात का पीछा करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम एला में हो, लेकिन मैं उसकी बेटी सायरा की कैद में आ गया। दरवाजे पर आने वाली सायरा कहती है फिक्र मत करो बोरो, तुम्हारी कैद ज्यादा देर नहीं चलेगी। ये सुनते साथ ही बोरो खड़ा हो जाता है। इधर वजीर सलाउद्दीन गुमुश्तगिन से पूछते हैं जिहाद की क्या कीमत है, बताएं हमें। तो गुमुश्तगिन कहता है सलेबियों को आए हुए तकरीबन एक सदी हो चुकी है, जब तक वो हमसे नहीं लड़ेंगे या हमारी मुखालफत नहीं करेंगे हमें इन जमीनों में उनकी मौजूदगी कबूल करनी होगी। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं तमाम इंसाफियों के बावजूद क्या हम सब कुछ नजरअंदाज कर दें और उन्हें हमारी मुकद्दस सरजमीन पर कब्जा जारी रखने दें? कैमास कहता है आपको खजाने की हालत का अंदाजा नहीं है, यकीनन जब मिस्र में बहुत से लोग मौजूद हैं आपके लिए दूसरी जगहों को देखना मुश्किल होगा। जंग में खर्च किए गए सोने की वजह से ज्यादातर लोग गुर्बत का शिकार हैं। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं क्या फातिमियों ने सलेबियों के साथ ताउन किया और वो अमीर हो गए? जिसने भी उनके साथ इत्तेहाद किया उसने सब कुछ खो दिया। बताओ जंगी रियासत के सिवा कौन कुफार का मुकाबला कर सकता है? अगर आप इसकी ताकत और लचक को खत्म करते हैं तो कौन बाकी रहेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। वजीर अहमद कहते हैं गुमुश्तगिन की बातों का मतलब सुल्तान नूरुद्दीन की दावत से गद्दारी। कैमास कहता है हरगिज़ नहीं, जिस इस्लाम ने हमें जिहाद का हुक्म दिया है उसने सोचने का भी हुक्म दिया है। हम किसी तबाही में आंखें बंद करके घसीटने के मुतमिल नहीं हो सकते। गुमुश्तगिन कहता है ज्यादा इम्कान है कि कुछ का तख्त प्रिंस बाल्डोन संभालेंगे। जब एक बच्चा हुक्मरानी करता है हमें अमन हासिल करने के लिए इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं बादशाह के साए पर काबू पाने वाले अपने अज़ाइम को हासिल करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि आपको भी उनकी हिमायत में कोई एतराज नहीं है। अफसोस है तुम सब पर। करातेगन गुस्से से कहता है अफसोस है तुम पर सलाहुद्दीन, कुछ का ख्वाब भूल जाओ। शाम जाने वाले रास्ते पर क्या हुआ वो हमें बताओ। क्या कैदी की बात सच थी? वजीर सलाउद्दीन हैरानगी से कहते हैं क्या तुम भी उस इल्जाम को मानते हो? करातेगन कहता है मैं किसी पर यकीन नहीं करता और तुम ये अच्छी तरह जानते हो सलाहुद्दीन। मेरी आंखों में देखो और सच बताओ, मैं करातेगन हूँ, यहाँ हर कोई मुझे जानता है, मुझे खुदा की नेमतें मिली हैं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मुझे जवाब दो, जब तुमने सुल्तान नूरुद्दीन को कमजोर देखा तुमने कहा कि उनका हुक्म है मिस्र छोड़कर हलब की तरफ भाग गए। मैंने सोचा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सब सुनने के बाद वजीर सलाउद्दीन उसकी बात करते हुए कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? करातेगन कहता है तुम गुमुश्तगिन को एक मुसीबत साज कहते हो, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे मेरे भांजे को लेने जाते हो। तुम मेरी पीठ के पीछे ये सब करोगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? खलील गुस्से से कहता है करातेगन अपनी हुदूद से आगे ना बढ़ो। करातेगन उससे पूछता है तुम क्या करोगे? हाँ, मुझ पर गुस्सा करने के बजाय अपने सुल्तान से कहो कि जवाब दे। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं अगर तुम इस वक्त मुझे नहीं जानते तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। अमीर असफहानी कहते हैं बहुत हो गया, ये सब के बारे में बात करने की जगह नहीं है। दीवान बर्खास्त होता है। वजीर सलाउद्दीन खड़े होकर कहते हैं इस फितने ने शुकूक व शुबहात को जन्म देने वालों का असल चेहरा जाहिर कर दिया है। अनकरीब हर कोई अपने अल्फाज की कीमत अदा करेगा। ये कहते साथ वो अपने करीबी साथियों और बाकी सबके साथ चले जाते हैं। करातेगन और बहादुर गुमुश्तगिन के साथ खड़े हो जाते हैं। एला किले में सायरा आसिफ के साथ जिंदान में आती है। बोरो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? सायरा के हुक्म पर बजंतनी सिपाही बोरो को पकड़ लेते हैं और सायरा के राकोश के गले पर तलवार तान लेती है। ये देखकर बोरो परेशान होते हुए कहता है रुको, क्या कर रही हो? ऐसा मत करो सायरा। तो सायरा कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरा दर्द महसूस करो बोरो। कैसा लगता है जब आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसे आपकी आंखों के सामने मार दिया जाए? मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझो। बोरो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे छोड़ो और मुझे ले जाओ, जो सजा देनी है दो मार डालो, मगर इसे जाने दो। उसे तड़पता हुआ देखकर सायरा कहती है बहुत खूब, तुम्हें मेरा दर्द महसूस होने लगा है। बोरो कहता है ये वो चीज नहीं है सायरा, ये कभी नहीं होगा, ये समझ लो। तुम्हारा बाप एक जालिम था जो सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार था। ये सुनते साथ ही सायरा उसके गले पर तलवार रख लेती है। बोरो मजीद कहता है लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, अपने गुस्से पर काबू रखो और अपनी ज़मीर की बात सुनो। अगरचे तुम्हारा खून राकीफ का है लेकिन तुम मुझ जैसी नहीं हो। सायरा गुस्से को जब्त करते हुए वहां से चली जाती है। शाम में गुमुश्तगिन करातेगन से कहता है करातेगन आप एक आदिल इंसान है, आपका शुक्रिया, आपने दुरुस्त समत का इंतखाब किया। तो करातेगन कहता है तख्त का कोई खेल नहीं बचा जो उसने ना खेला हो, मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी। बहादुर कहता है मेरे अमीर का खून रहेगा नहीं जाएगा। करातेगन कहता है वो मिस्र से आता है और हलब और शाम में अफरा तफरी फैलाता है। मैं सुल्तान नूरुद्दीन की खातिर खामोश रहता हूँ, लेकिन आखिरी बार जो मैंने सुना वो मेरे लिए काफी था। गुमुश्तगिन कहता है मैंने वाकई इस मुंसिफाना मौक़िफ़ की तारीफ की है, आप सलाउद्दीन से अलग हो जाएंगे ये जाहिर है। मुझे शाम में हमेशा आप जैसे नेक लोगों की जरूरत है, मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, बस ये बात जान लें। करातेगन कहता है गुमुश्तगिन में कोई भी दरवाजा खोल सकता हूँ, तो मेरे भांजे के नायब होगी ये बात जान लो। ये कहते साथ ही करातेगन चला जाता है। दूसरी तरफ वजीर सलाउद्दीन अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। अमीर असफहानी कहते हैं हमें गुमुश्तगिन के फितने से मोहतात रहना चाहिए, अगर उसके पास अपना खेल है तो हमारे पास भी अपना खेल है। इमाद वजीर कहते हैं करातेगन ने अपना फर्ज बखूबी निभाया, यहाँ तक कि मुझे भी उस पर यकीन आने वाला था। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन उस समय को याद करते हैं जब उन्होंने करातेगन से कहा था मलिक इस्माइल को महफूज हाथों में रखने के लिए तुम अमीर गुमुश्तगिन के पास जाओगे और उसका असली चेहरा जाहिर करोगे। तुम्हें ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिनसे साबित हो जाएगा कि उसने मलिक इस्माइल को अगवा किया था और इसलिए तुम सबको बावर करवाओगे कि तुम मुझसे नाराज हो। करातेगन ने खुश होते हुए कहा था वल्लाह क्या जबरदस्त मंसूबा है। इस ख्याल के बाद वजीर सलाउद्दीन कहते हैं अगर करातेगन ने इंकशाफ किया कि डाकू ने झूठी बात की है तो अमीरों की हिमायत तुम्हारे पास वापस आएगी। काजी फजल कहते हैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बगदाद के लिए रवाना हो जाऊँ। इजाजत मिलते साथ ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसलिए में खलील वहाँ पे आकर कहता है मेरे सुल्तान ताजिर एलिसा आया है। इजाजत मिलते साथ ही एलिसा वहाँ पे आता है और कहता है सुल्तान खबर बुरी है, आपके भाई बोरो को एला किले में कैद कर लिया गया है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ में सिबिला
بالین اور ولیم بالڈون کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے کچھ میں ایک نیا دور ہمارا منتظر ہے، آپ کے بابا مارلیک کی بے وقت موت، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تخت پہ بیٹھنا آپ کا حق ہے۔ سبیلا کہتی ہے لیکن آپ کی بیماری بالڈون، ایسا کام کرنا آپ کی صحت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بادشاہی کے لیے بڑی ذمہ داری اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولیم کہتا ہے پرنس بالڈون، آپ اور کچھ دونوں کے مفاد میں ہے کہ آپ تخت پر اپنا دعوت ترک کر دیں۔ بالڈون پوچھتا ہے اگر میں تخت پہ نہ بیٹھوں تو کون بیٹھے گا؟ بالین کہتا ہے چونکہ میں آپ کی بہن سے شادی کروں گا اس لیے مجھے بادشاہ کا خطاب دیا جائے گا، لیکن مجھ پر یقین کرو بالڈون، یہ عنوان بادشاہ ہونے کے بارے میں نہیں ہے، ہم سب کا ایک مشترکہ مقصد ہے، ویسے جیسا کہ بادشاہ مارلیک کچھ اور ہمارے ہم مذہب پرستوں کا ہے۔ سبیلا کہتی ہے یہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو الجھائیں گے، برائے مہربانی ان کی طرف کان مت لگانا، بس ہم پہ بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے بالڈون؟ بالڈون سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تو الیسا کہتا ہے ہم نے مل کر تاجر پیدرو سے معلوم کیا تھا کہ کراکوش اعلان میں ہے، میں نے اصرار کیا تھا کہ ہمیں حمایت کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن میں بورو صاحب کو نہیں روک سکا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وزیر صلاح الدین کہتے ہیں میں اعلیٰ سے بورو اور کراکوش کو لینے جاؤں گا اور انتخابات سے پہلے واپس آ جاؤں گا، اس کے علاوہ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ خلیل ایتسس کو خبر بھیجو اور اسے تیار ہونے کو کہو، ہم اعلیٰ جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل چلا جاتا ہے۔ کچھ میں لڑ گئے ماریا سے کہتا ہے خدا کا منصوبہ بہت عجیب ہے، کسی کو سمجھ آنا ممکن نہیں، سلطان نور الدین نے بھی بادشاہ مارلیک کے ساتھ آخری سانسیں لے لی ہیں۔ ماریا کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے شام میں بھی تخت کو تباہ کر دیا جائے گا جیسے کچھ میں ہوگا۔ لڑگئے کہتا ہے ہاں اگر صلاح الدین اس تخت کے نیچے سے نکل آیا تو ہمارا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ ماریا کہتی ہے سب سے پہلے کچھ کا تخت لڑگئے، پھر ہم صلاح الدین کا بھی خیال رکھیں گے۔ لڑگئے کہتا ہے جتنا میں ولیم کو جانتا ہوں تو وہ بالین اور سبیلا کا تعاون لے گا، وہ بالڈون کو تخت سے دستبردار ہونے پہ راضی کرے گا، اس لیے میں چاتلیون وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے کائرہ کے بعد سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ لڑگئے کہتا ہے یہ کچھ ہے چاتلیون، یہاں سب کچھ تیزی سے بدلتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی۔ چاتلیون کہتا ہے میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں میری ملکہ کہ جو کچھ کائرہ میں ہوا میں بھول جاؤں گا، کچھ میں نئے حکم کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ماریا کہتی ہے کون چاتلیون آپ درست مت میں ہونے کے لیے کافی ہوشیار ہیں۔ پھر یہ کچھ اور اس کے نئے مالکان یہ کہتے ہیں سنتے ساتھ وہ سب شراب سے لطف اندوز ہو۔ شام میں کیماس گمشتگن سے کہتا ہے ٹھیک ہے بہت خوب، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ جو امیر آپ کی حمایت کرتے ہیں وہ اپنا انتخاب تبدیل نہیں کریں گے؟ تو گمشتگن کہتا ہے پریشان نہ ہوں، میں ان پر اختیار رکھتا ہوں۔ کیماس کہتا ہے ہاں لیکن پھر بھی احتیاط کرنا بہتر ہے، بغداد کی رائے بھی اہم ہے۔ گمشتگن کہتا ہے خلیفہ لڑائی میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ فاتح کی حمایت کرتا ہے۔ کیماس کہتا ہے تو کیا اس انتخاب کو بار بار دہرایا جائے تو نتیجے میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ نتیجہ پہلے بھی برابر آیا ہے۔ جواب میں گمشتگن کہتا ہے میرے پاس اصل میں ایک ترپ کا پتا ہے جو نتیجہ بدل دے گا، لیکن جب میں اس ترپ کے پتے کا استعمال کروں گا تو آپ کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیماس پوچھتا ہے میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو گمشتگن کہتا ہے اعلیٰ کے پاس مجھے نائب بنانے کا انتخاب ہے، جبکہ صلاح الدین اپنے بھائی کے بارے میں فکر مند ہے، ہم اپنے ترک کا پتا سامنے لائیں گے۔ کیماس کہتا ہے ہر وہ شخص جسے انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے وہ شام میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں بچا ہے۔ گمشتگن کہتا ہے اس کے بارے میں اتنا یقین نہ کرو، کیا تمہیں یاد ہے ہم جنگ کیوں لڑے تھے؟ میں نے ایک بار تم سے کسی کو اغوا کیا تھا جسے تم نے زندان میں ڈال دیا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی کیماس غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ زندہ ہے؟ جواب میں گمشتگن کہتا ہے جی ہاں۔ قاہرہ میں فاطمہ خاتون ایک ملازمہ کے ساتھ شمسہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میں تمہارے پاس ایک خادمہ لائی ہوں، اگر تم اسے قبول کرو تو یہ اب سے ہمیشہ ایک خادمہ کے طور پر تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گی شمسہ خاتون۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے حریم آغا نے اس کی سفارش کی ہے، اس نے اسکندریہ میں تعلیم حاصل کی اور یہ بہت ہنرمند بھی ہے۔ شمسہ کہتی ہے والدہ بلا شبہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے اب تک ہمیشہ اپنا کام خود کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں ہر وقت کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کی عادت ڈال سکتی ہوں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے تمہیں عادت ہو جائے گی بیٹی، ابھی تمہیں احساس نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا کام مزید بڑھ جائے گا۔ شمسہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم زندگی بھر کے دوست بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شام میں وزیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتے ہیں اعلیٰ قلعے میں دعویٰ بولنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، معمول سے مختلف ترتیب درکار ہے۔ مصر کے سلطان کے طور پر میں اعلیٰ قلعے کا دورہ کروں گا، قلعے کے کماندار سے ملاقات کروں گا، قیدیوں کو سرکاری طور پر نکلوانے کی درخواست کروں گا، تبھی تم قلعے میں گھس جاؤ گے۔ اس لیے میں گمشتگن بغیر اجازت کے وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے منصوبہ اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ وزیر صلاح الدین غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ بغیر اجازت اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا کسی نے آپ سے آپ کی رائے پوچھی؟ تو گمشتگن کہتا ہے میں اب بھی اپنا تعاون پیش کرنا چاہوں گا، میں بورو کے بارے میں معذرت خواہ ہوں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں مجھے دیکھو میں پہلے ہی غصے میں ہوں، جو کہنا چاہتے ہو کہو اور پھر جاؤ۔ گمشتگن کہتا ہے میں قلعے کے خفیہ سرنگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر آپ میری مدد چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ وزیر صلاح الدین سے پوچھتے ہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواباً گمشتگن کہتا ہے جب خاندان کی بات آتی ہے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے صلاح الدین، جب آفت آتی ہے تو مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ میں سبیلا بالین سے کہتی ہے مجھے خدشہ ہے کہ ماریا کچھ کرے گی اور بالڈون کو الجھائے گی۔ جواب میں بالین سے کہتا ہے پرنس بالڈون اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ماریا یا کوئی اور اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سبیلا کہتی ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سامنے ہے۔ جواب میں بالین کہتا ہے میں جانتا ہوں اور ہم اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کچھ کو بغیر توجہ کے نہیں چھوڑ سکتے سبیلا۔ سبیلا کہتی ہے جیسا کہ میرے بابا نے کہا تھا ہر شے کچھ کے لیے ہے۔ بالین بھی اسے کہتا ہے ہر شے کچھ کے لیے ہے۔ اس لیے میں ولیم وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے پرنس بالڈون اپنے کمرے میں سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے سنتے ساتھ وہ تینوں نکل جاتے ہیں۔ ادھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں گمشتگن بھی ہمارے ساتھ آئے گا۔ گمشتگن جا چکا ہوتا ہے اور ایسے وزیر صلاح الدین سے پوچھتے ہیں سلطان کیا اس جیسے غدار کے ساتھ دشمن کے قلعے میں جانا درست ہے؟ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں شاید یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن فی الحال یہ ضروری ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ بائبورا کہتا ہے کرتگن بھی اس کی غیر موجودگی میں ڈاکو کو تلاش کرتے ہوئے آرام سے حرکت کر سکتا ہے۔ کچھ میں بالڈون تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بابا بادشاہ مارلیک کی موت کے بعد مجھے تخت کے وارث کی حیثیت سے فیصلہ کرنا تھا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی کہ میں اس بادشاہی کو سنبھال سکوں، مزید یہ کہ میں بیمار ہوں، تو اس لیے کچھ کے تخت سے دستبردار ہو کر میں یہ حق اپنی بہن شہزادی سبیلا کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جیسا کہ میرے بابا نے ہمیشہ کہا ہر شے کچھ کے لیے ہے، میں پرنس بالڈون کچھ کے لیے کچھ کی بادشاہی کو ترک کرتا ہوں۔ یہ سن کر ماریا لاڑگے اور چاتلیون کو بہت غصہ آتا ہے، جبکہ باقی سبیلا ولیم اور بالین خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اگلے دن وزیر صلاح الدین گمشتگن اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اعلیٰ قلعے کی
जानिब रवां दवा होते हैं और गुमिश्तगिन से पूछते हैं, एला में आपके पास ऐसा कौन सा काम था कि आप उसके खुफिया हिस्सों को जानते हैं? जवाब में गुमिश्तगिन कहता है, जिहाद के लिए निकलने वाले आप वाहिद नहीं है सलाउद्दीन। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं, दीवान में आपको गुफ्तगू करते हुए देखा, लगता है आप जल्दी थक गए हैं। गुमिश्तगिन कहता है, नहीं, मैंने जिहाद को तर्क नहीं किया, बस हमें थोड़ी देर के लिए अमन कायम करने की जरूरत है। हमें अपने किलों और शहरों को मजबूत और बहाल करना चाहिए और उसके लिए क्राकोश जैसे माहिर तामीरात की जरूरत है। वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं, तो आप जानते हैं कि क्राकोश एला में है? जवाब में गुमिश्तगिन कहता है, हर कोई क्राकोश के साथ अपने किले मजबूत करना चाहता है। चूंकि कुफार को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने बरसों से कैद में रखा। वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं, अगर आप एला क्राकोश के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा पुरजोश ना हो। तो गुमिश्तगिन कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कभी कभी जो नजर आता है वही होता है सलाउद्दीन। मुझे शाम में रहने से तकलीफ हुई जबकि 2 बहादुर सलीबियों की कैद में हैं, तो इसलिए कोई और वजह तलाश ना करें। एला किले में आसिफ और कमांडर सायरा के पास आते हैं। आसिफ कहता है, सलाउद्दीन को पता चल गया है कि उसका भाई यहाँ है, वो शाम से निकल चुका है और आ रहा है। सायरा कहती है, कातिब को बुलाओ कमांडर, मेरे पास मेहमान खुसूसी के लिए एक दावतनामा लिखा जाएगा। कमांडर पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मेहमान कौन है? तो सायरा कहती है, आराम करो, सलाउद्दीन हमें छू भी नहीं सकता। जब वो अपने भाई को लेने आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा। अभी मेरा आपसे एक काम है। यह सुनकर वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं। जिंदान में बोरो क्राकोश से पूछता है, यहाँ से निकलने का क्या कोई रास्ता नहीं है? क्राकोश उसे कहता है, वो यहाँ इंतहाई खतरनाक और कीमती आदमियों को रखते हैं, हर कदम पे पहरेदार हैं। बोरो उसके पास बैठते हुए पूछता है, क्या इनमें कोई कमजोरी नहीं है? यहाँ बरसों बीत गए, आपने यकीनन कुछ सोचा होगा। जवाब में क्राकोश कहता है, यकीनन सोचा है। वो हर रोज कैदियों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाते हैं ताकि कुछ हवा मिले। पहले तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देते थे, फिर उन्होंने मुझे भी बाहर जाने देना शुरू कर दिया। वो सिपाहियों को बेड़ में रखते हैं लेकिन दीवारें नीचे हैं और हम इस पे काबू पा सकते हैं। यह सुनकर बोरो कहता है, अगर हम वहाँ से गुजरें तो हम किले के सुरंगों तक पहुंच सकते हैं। अगर हम इन मुहावजों को उतार दें और जान लें कि मेरे भतीजे कहाँ हैं, हम ऐसा करेंगे, लेकिन कैसे? हम अपने भतीजों को कैसे ढूंढेंगे? हम नहीं जानते कि कौन सा रास्ता कहाँ से खुलता है। क्राकोश खुश होते हुए बिस्तर के नीचे से नक्शा उठा लाता है और कहता है, मैं बरसों से इसे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदान का नक्शा मैंने अपने दिमाग में हिफ्ज किया हुआ है। यह सुनकर बोरो बहुत खुश होता है और उसे दाद देता है। कुछ में मारिया, लाडगाय और चात्रियन बहुत परेशान होते हैं। लाडगाय कहता है, विलियम विलियम विलियम, मैं जानता था, उसने शहजादे को उलझाया। मलका, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक विलियम सांस ले रहा है, कुछ के बारे में आपका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। चात्रियन कहता है, ऐसा करने का दरअसल एक बहुत ही आसान तरीका है मलका, मैं उस विलियम और उसकी किताबों को तारीख के खाक आलूद सफात में दफन कर दूं। मारिया कहती है, कौन चात्रियन, आप हमेशा वही करते हैं जो आपके जहन में आता है, लेकिन याद रखें, लोगों के जहनों में आने वाले पहले ख्यालात औसत ज़हानत के होते हैं, एतदाल पर मबनी नहीं होते। विलियम अपनी किस्मत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि हमारे पास जो कुछ है वो पुराना कुछ नहीं है। शामिल बेस करातगिन के पास आता है और कहता है, डाकू अभी तक नहीं मिला, ज़ाहिर गुमिश्तगिन ने उसे किसी खुफिया जगह रखा होगा। करातगिन कहता है, गुमिश्तगिन का कुत्ता क्या नाम है उसका? अलबेस कहता है, कराजा। जवाब में करातगिन कहता है, हाँ कराजा, उसे ढूंढो और उसका ताकुब करो, अगर हमें कोई इशारा मिलता है तो हम उस पर अमल करेंगे। यह सुनते साथ ही अलबेस चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि वज़ीर सलाउद्दीन गुमिश्तगिन और अपने साथियों के साथ सराय में दाखिल होते हैं और आगे बढ़कर बैठ जाते हैं। सराय लोगों से भरा होता है। गुमिश्तगिन से दूर बैठकर एज़ीज़ अपने साथियों से कहते हैं, वक्फा लेना हमारे सुल्तान का रिवाज नहीं, लेकिन ये गुमिश्तगिन। बैबोरा कहता है, शायद वो गुमिश्तगिन का जायजा ले रहे हैं, हम क्या जानते हैं। इदरीस कहता है, किसी भी सूरत हाल में मोहतात रहना बेहतर है। वहाँ बैठे हुए लोग मशकूक निगाहों से उन्हें देख रहे होते हैं। सरबराह साथियों से कहता है, शिकार पिंजरे में दाखिल हो गया है, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। असल हदफ सलाउद्दीन है, ये हुक्म है, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम ही गालिब होंगे। वज़ीर सलाउद्दीन मुसलसल गुमिश्तगिन की जानिब देख रहे होते हैं। कुछ में सबीला विलियम और बालिन से कहती है, मारिया की इस सूरत हाल को खामोशी से कबूल करना मुझे बेचैन कर रहा है। मेरा मतलब है कि उस औरत ने इतनी आसानी से अपने अज़ाइम को क्यों तर्क कर दिया है। बालिन कहता है, उसे एहसास हो गया है कि अब करने को कुछ बाकी नहीं रहा। विलियम कहता है, फिर भी हमें तेजी से काम करने की जरूरत है, जैसा कि आपने दरख्वास्त की थी, कल आपकी शादी एक सादा तकरीब में होगी। सबीला खुश होते हुए कहती है, और यकीनन आप ही हमारी शादी करवाने वाले होंगे विलियम। विलियम उससे कहता है, बड़े एजाज के साथ, अब मैं तैयारियां देखने चलता हूँ। ये कहते साथ ही विलियम चला जाता है। एला किले के जिंदान में क्राकोश बोरो से कहता है, अपने रफ्तार और गोग बोरो की ताकत से हमने बहुत से काफिरों को हलाक नहीं किया, पागल भेड़िए। एक बार गोग बोरो ने अपनी गद्दी जोली, दुश्मन उसे उड़कर फना हो गया। बोरो से कहता है, क्राकोश इतना नहीं, एक तूफान आया और बिजली चमकी, ये भी काफी नहीं है। तो क्राकोश उसके पास बैठते हुए कहता है, पागल भेड़िया। बोरो से कहता है, मैं इस नजर को जानता हूँ, बताओ ये क्या है। तो क्राकोश उसे कहता है, क्या आपको याद है जब आप आग के पास बैठते हैं तो आप हमेशा वो गीत कैसे गाते हैं? बोरो गाने लग जाता है, ये पहाड़ कोयले से बने हैं, गुजरा हुआ दिन जिंदगी भर है। बाहर से सायरा आगे बढ़ रही होती है कि ये सुन के रुक जाती है। बोरो गाता है, वहाँ किस्मत का एक परिंदा है, उसका पंजा लोहे का बना हुआ है। वहाँ किस्मत का एक परिंदा है, उसका पंजा लोहे का बना हुआ है। और मेरे प्यारे में तेरे रास्ते से सरशार हूँ, तुम मुझे बचा ले या कर दे कुर्बान, या मेरे दर्द का कोई कर दे दरमा। वो साथ साथ सायरा के साथ गुजरे हुए लम्हात को याद करता है और मजीद कहता है, ये रास्ता कदीम है, ये दूसरी तरफ जाता है, ये दूसरी तरफ इशारा करता है। ये रास्ता कदीम है, ये दूसरी तरफ जाता है। एक अजनबी यहाँ मर गया, परिंदे मातम में चले आते हैं, यहाँ एक अजनबी मर गया। आओ मेरे प्यारे में तेरे रास्ते से सरशार हूँ, या तो मुझे बचा ले या कर दे कुर्बान, या मेरे दर्द का कोई कर दे दरमा। सायरा भी उसे देखते हुए बड़े गौर से सुन रही होती है। आखिर में क्राकोश कहता है, अल्लाह आपके अस्लाफ पे रहम करे। सायरा गमगीन होते हुए चली जाती है और सिपाही जिंदान खोलकर उनके पास आता है। फिर कहता है, हम आपको बाहर चाहते हैं। ये कहते साथ उन्हें बांधने लग जाता है। सराय में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, सिपाहियों चलो रवाना होते हैं। यह सुनकर खलील जैसे उठ के आगे बढ़ता है, हमलावरों का सरबराह खलील को दबोच लेता है। उसकी देखा देखी सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सरबराह वज़ीर सलाउद्दीन से कहता है, तलवारें नीचे रखो और हथियार डाल दो या मैं इसका गला काट दूंगा। वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है, तुम किसके आदमी हो? वह सरबराह कहता है, बात लंबी ना करो, हथियार डाल दो। वज़ीर सलाउद्दीन मुसलसल गुस्से में उसे देखते ही चले जाते हैं। उधर सिपाही बोरो को लेकर सायरा के पास आता है तो सायरा कहती है, जंजीरों की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें उतार सकते हो। यह सुनते साथ ही सिपाही बोरो को खोलकर चला जाता है। बोरो सायरा से कहता है, अब इसे ज्यादा मत खींचो, अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल गया तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा न
नरमी नहीं करूंगा। सायरा तलवार निकालती है और उस पर तानते हुए कहती है, खामोश रहो। बोरो कहता है, चलो इसे काट दो। रुको मत, काट डालो। गमगीन होते हुए सायरा के हाथ कांपने लग जाते हैं। इधर वज़ीर सलाउद्दीन हमलावरों से कहते हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरे साथी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हारे सर काट के उसके कदमों में फेंक दूंगा जिसके हाथ में तुम्हारी लगाम है। मगर सरबरा कहता है, तुम जब तक हथियार नहीं डालते तुम्हारे लिए कोई फरार नहीं। सिपाहियों की नजर वज़ीर सलाउद्दीन पे होती है तो गुमिश्तगीन कहता है, सलाउद्दीन ये गिरा इस तरह हल नहीं होगी, तुम हम सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। वज़ीर सलाउद्दीन गुस्से से कहते हैं, खलील मेरा साथी है, कुछ भी गलत ना करना। गुमिश्तगीन कहता है, मैं तुमसे हुक्म लेने वाला नहीं हूँ। ये कहते साथ वो जग उठा के एक हमलावर को दे मारता है। खलील खंजर नीचे करता है और हमलावर को काट डालता है। वज़ीर सलाउद्दीन और उनके साथी भी बाकियों पे टूट पड़ते हैं। हमलावर करते ही चले जाते हैं। गुमिश्तगीन भी तलवार का भरपूर इस्तेमाल करता है। एला के लिए मैं बोरो कहता है, चलो सायरा काट डालो। मगर सायरा तलवार फेंक देती है और गमगीन होते हुए कहती है, गारत हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकती, मैं ये नहीं कर सकती। ये कहते साथ वो घुटनों के बल गिर जाती है। तो बोरो पूछता है, तुम क्यों नहीं कर सकती सायरा? क्यों? जवाब में सायरा कहती है, क्योंकि मुझे तुमने गार में अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने मेरे जख्म पे मरहम रखा था, क्या तुम इसे समझते हो? बोरो भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ऐ सहराई फूल, ये नफरत खत्म करो, बहुत हो गया, अब जिद ना करो, वरना ये रंजिश तुम्हें कमजोर कर देगी। अगर तुम मुरझाओगी तो ये मेरे अंदर की उम्मीद भी मुरझा जाएगी। सायरा उसकी जानिब देखते हुए कहती है, उम्मीद? तुमने इस सहराई फूल को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया है बोरो, तुमने वही किया जो तुम्हारे नाम के मुवाफिक था। तुम एक जंगली भेड़िए हो और इसलिए तुमने बगैर किसी रहम के इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोरो उसका हाथ थामते हुए कहता है, इस दफा मुझे अपने दिल के जख्मों की दवा बनने दो, मुझे बनने दो। मगर सायरा हाथ पीछे करते हुए कहती है, लेकिन हमारे दरमियान खून बहाया गया है। ये कहते साथ वो खड़ी हो जाती है और मजीद कहती है, जब तक मैं तुम्हें मुर्दा ना देख लूं मेरे जख्म नहीं भरेंगे। बोरो भी खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, वो खून हमें अलग करने के लिए नहीं बहाया गया सायरा, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम नहीं कर सकती। सायरा कहती है, ये मैं नहीं बल्कि कोई और करेगा, तुम किसी और के हाथों मरने वाले हो बोरो, तुम इसे कब्र में भी याद करोगे। फिर सिपाही को अंदर बुलाकर कहती है, जिंदान में ले जाओ इसे। सिपाही आगे बढ़ता है तो बोरो खुद ही चल पड़ता है। सराय में हमलावर मुसलसल कट रहे होते हैं। एक हमलावर खलील पे हावी होता है तो वज़ीर सलाउद्दीन उसे काट डालते हैं। सबको जन्म हासिल करने के बाद वज़ीर सलाउद्दीन गुमिश्तगीन को दबोच लेते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने दोबारा मेरे साथी की जान को खतरे में डालने की कोशिश की। गुमिश्तगीन हाथ पीछे करते हुए कहता है, मैंने ठीक किया सलाउद्दीन, अगर मैं मजीद इंतजार करता तो खलील बहुत पहले मर चुका होता। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर गलती कर दी है। गुमिश्तगीन कहता है, तुम मुझे अपने साथ नहीं लाई, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ, मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये कहते साथ ही गुमिश्तगीन चला जाता है। वज़ीर सलाउद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, हम जब तक कैला पहुंचे तो गुमिश्तगीन को देखना। ये कहते साथ ही वो भी अपने साथियों के साथ चल पड़ते हैं। शाम में हिजर खातून मलिक इस्माइल को दूध पिला रही होती है, इसलिए में करातेगन वहाँ पे आ जाता है और ये मंजर देखकर पलटते हुए कहता है, ओह माफ कीजिएगा हिजर खातून, मैं अपने भांजे से मिलने आया था, मुझे नहीं मालूम था। वो जाने लगता है कि हिजर कहती है, हुजूर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपका भांजा। करातेगन आगे बढ़ता है और शहजादे को उठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, नाक देखो इसकी, बिल्कुल उकाब की तरह है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारा शुक्रिया, तुम भी एक बहादुर औरत हो। जब उन चोरों ने मेरे भांजे पर हमला किया तो तुम भागी नहीं, तुमने इसके लिए अपने आप को कुर्बान किया और इसकी हिफाजत की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हिजर कहती है, ये मेरा फर्ज था। जवाब में करातेगन कहता है, तुमने वही किया है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेवा हाजरा ने किया था जब वो अपने बेटे के लिए पानी लेने निकली थी। यह सुनकर हिजर कहती है, आपने हजरत इब्राहिम और उनकी बीवी हाजरा की बात की, लेकिन असमत खातून बहुत उदास थी क्योंकि आपने दीन हक को कबूल नहीं किया। करातेगन कहता है, आह बहन खातून आह, वो लोग जानते हैं कि मैं किस चीज पर यकीन रखता हूँ, अपने बच्चे के बारे में बताओ। हिजर गमगीन होते हुए कहती है, उसकी जिंदगी शायद इतनी ही थी, पैदाइश के एक दिन बाद ही मैंने उसे खो दिया। करातेगन पूछता है, और तुम्हारा शौहर? हिजर कहती है, वो अपने बच्चे को देखने से पहले ही शहीद हो गया। करातेगन के मजीद सवाल पूछते पूछते अलबेज वहाँ पे आ जाता है। उसे देखकर करातेगन गुस्से से कहता है, अरे ओ जादूगर। तो अलबेज आहिस्ते से कहता है, मैंने एक घर से कराजो को निकलते हुए देखा, वो ज्यादा देर अंदर नहीं ठहरा, बाहर निकलते वक्त बहुत ज्यादा मुहताज था, डाकू वहाँ हो सकता है। यह सुनते साथ ही करातेगन शहजादे को देखकर चला जाता है। कुछ में मारिया चातियोन और लाडगाई से कहती है, हम अगर अकेले विलियम से छुटकारा पाते हैं तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। बालेन, सबिला और विलियम ये सब एक मुहाज की तरह हमारे खिलाफ खड़े हैं। लाडगाई कहता है, मंसूबा वाज़ेह है, बालेन सबिला से शादी करेगा और वो बादशाह बन जाएगा। मारिया कहती है, लाडगाई ऐसा नहीं होगा, हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा बनाएंगे कि ये शादी ना हो और बालेन बादशाह नहीं बनेगा। इस मंसूबे के इख्तिताम पर विलियम और बालेन को जिंदान में डाल दिया जाएगा। लाडगाई पूछता है, ये कैसे मुमकिन होगा? मारिया कहती है, ये उस शख्स के हाथों से होगा जिसे तुम मारने में नाकाम रहे हो लाडगाई, और इस बार वो वाकई मर जाएगा। हकीम लतीफ का खून बालेन और विलियम के हाथों पे जा गिरेगा और शाही ताज हकदार को दिया जाएगा, यानी कि बाल्डोन को। शाम में करातेगन अलबेज और बहादुर के साथ खुद को छुपाए उस घर की जानिब जा रहा होता है। वो सब तेजी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कुछ में सबिला अपनी खादमा से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम विलियम के कमरे में जाओ और मेरे लिए उसके कमरे से कुछ लाओ, कुछ जाती होना चाहिए और वाज़ेह रहे कि वो चीज विलियम की हो। ये सुनते साथ ही खादमा चली जाती है। इधर वो डाकू भागने की तैयारी कर रहा होता है मगर दरवाजा खुलता है और करातेगन अपने साथियों के साथ उसके सर पे जा पहुंचता है। डाकू डरते हुए कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने वो सब कुछ बता दिया जो गुमिश्तगीन ने पूछा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते साथ ही करातेगन अपना चेहरा आया कर देता है और कहता है, ये मैं हूँ करातेगन। अब बताओ गुमिश्तगीन ने तुम्हें ये तमाम झूठ फैलाने के लिए क्या कुछ दिया है? डाकू कहता है, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा है। करातेगन गुस्से से कहता है, अभी भी झूठ बोल रही हो। फिर उसका बैग देखते हुए कहता है, अरे इसे देखो, ये फरार होने के लिए अपना सामान बांध रहा था, कहाँ लेकर जा रही हो ये सामान? क्या तुम्हें लगता है कि गुमिश्तगीन तुम्हें छोड़ देगा? वो तुम्हें मार डालेगा ताकि हकीकत सामने ना आए, लेकिन अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, जितना उसने दिया है उससे ज्यादा देंगे। अरे ये उसने क्या दिया है? ये तो सिर्फ चांदी है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हमारे पास सोना है, सोना, और साथ में ये तलवार भी। डाकू डरते और लालच में आकर एकदम से कहता है, ठीक है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। यह सुनकर करातेगन बहुत खुश। कुछ में विलियम अपने कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ जाता है। ये देखकर मारिया की खादमा उसके कमरे की जानिब बढ़ती है और मुहतात अंदाज में दाखिल हो जाती है। शाम में करातेगन अपने साथियों के साथ डाकू को लेकर बाहर निकलता है और खुद को छुपाए हुए वो सब एहतियात से आगे बढ़ते हैं, मगर इसी लम्हे गुमिश्तगीन के आदमी उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर करातेगन कहता है, ओ गुमिश्तगीन ने वक्त जाया नहीं किया,
हरकत में आओ और अपने आप को बेनकाब ना करना। ये कहते साथ ही कार्तिकेयन अपने साथियों के साथ उन पे हमलावर होता है, जबकि डाकू पीछे छुप जाता है। कार्तिकेयन भरपूर कोशिश करता है कि डाकू उसके हाथ से ना निकले या उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ में मारिया की मुलाजमा विलियम के कमरे में तलाश शुरू कर देती है। तलाश करते करते उसे वहां से विलियम की अंगूठी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अंगूठी लेकर निकल पड़ती है। इधर कार्तिकेयन, अलबेज और बहादुर मुसलसल हमलावरों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। लड़ते हुए अलबेज कहता है, ये बहुत ज्यादा है, हम क्या करेंगे हुजूर? तो कार्तिकेयन चिल्लाते हुए कहता है, बोतान लगाने वाले की हिफाजत करो चलो। वो डाकू उठकर जैसे ही भागने लगता है, हमलावर को छोड़ा हुआ एक तीर उसे जहन्नुम वासिल कर देता है। बुरा काम करने वाला बुरे अंजाम को जा पहुंचता है। अलबेज भागते हुए उसके पास पहुंचता है। हमलावर पे दर पे कार्तिकेयन और बहादुर पे हमले करते हुए पीछे हट जाते हैं। कार्तिकेयन डाकू की जानिब भाग ही रहा होता है कि गिर जाता है। ये देखकर अलबेज तेजी से उसके पास जाता है और उसे सहारा देता है। कार्तिकेयन कहता है, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। ओह मेरा बाजू। फिर उन्हें भागते हुए देखकर कहता है, वो भाग रहे हैं, हमने उन्हें अपनी गिरफ्त से जाने दिया अलबेज, मेरी बाजू पे चोट लगी है, वो डाकू भाग गए हैं, हम सलाउद्दीन को क्या जवाब देंगे? लानत ओ लानत। कुछ में लतीफ बाल्डोन को दवा लगा रहा होता है, तो बाल्डोन कहता है, मैं इस दवा के बाद उठ सकूंगा ना? जवाब में लतीफ कहता है, अगर आप सब्र करें और मेरी बातों पर अमल करें तो फिर आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसलिए में बालिन और सबीला वहां पे आते हैं। बाल्डोन खुश होते हुए उनसे कहता है, क्या आप जानते हैं कि हकीम लतीफ ने मुझे कहा कि मैं उठ सकूंगा? बाल्डोन को खुश देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लतीफ कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें सब्र करना होगा, शहजादे ने दवा ले ली है, इंशाल्लाह जल्द बेहतर नताइज सामने आएंगे। सबीला उसका शुक्रिया अदा करती है और बालिन लतीफ के साथ एक तरफ हो जाता है। फिर उसे कहता है, तुम मारे जाने से बच गए, तुम जानते हो, अब जबकि तुमने दवा मुकम्मल कर ली है तो तुम वाज़ेह तौर पे हदफ बन सकते हो। लतीफ उसे कहता है, बीमारी के लिए दवा मुकम्मल इलाज नहीं है, आप जानते हैं, अभी के लिए ये नए जख्मों को जाहिर होने से रोकेगी। शहजादे के मुकम्मल सेहतियाब होने के लिए इलाज तवील अरसे तक जारी रहेगा। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं दवा का तरीका लिख कर आप तक पहुंचा दूंगा। बालिन कहता है, ये सही कहा है, ये सबसे महफूज तरीका है। इसलिए मैं मारिया किताब उठाए वहां आती है और बाल्डोन को देखकर कहती है, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हकीम लतीफ हर रोज बेहतरी ला रहा है और आप रोज बरोज बेहतर होते जा रहे हैं शहजादे। लतीफ कहता है, ये बाल्डोन के आराम करने का वक्त है। मारिया बाल्डोन से कहती है, मैं यहाँ आपको एक किताब पढ़कर सुनाने आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मशहूर सुरमाओं की मुहिम जुई। बाल्डोन खुश होता है तो सबीला गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है, आपने हकीम लतीफ को सुना है, बाल्डोन को आराम करने की जरूरत है। मारिया कहती है, ठीक है, मैं फिर इसे बाद में सुना दूंगी। मगर बाल्डोन कहता है, नहीं बराए करम, ये मुझे अभी सुनाई। यह सुनकर सबीला को बहुत गुस्सा आता है, मगर शहजादे के स्टाल पर वो सब लोग चले जाते हैं। मारिया कहानी सुनाने के लिए शहजादे के पास आ बैठती है। एला की जिंदान में रोशनी देखते हुए कराकोश खुश होते हुए कहता है, वो कुछ देर बाद हमें सैन में ले जाएंगे। तो बोरो कहता है, मेरी तरफ से इशारे का इंतजार करना। कुछ ही देर में सिपाही वहां पे आ जाते हैं और जैसे उन्हें बांधने लगते हैं वो दोनों उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। बोरो के गले पे जोर बढ़ाते हुए पूछता है, अली और तुराब कहाँ हैं? वो कहता है, मश्रिक की जानिब। यह सुनते साथ ही बोरो उसकी गर्दन तोड़ डालता है और कराकोश कहता है, वो सैन के मुखालिफ सिमत में है, हम उस तरफ जाकर वक्त जाया करेंगे। मगर बोरो कहता है, मैं अपने भतीजों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर कराकोश बहुत खुश होता है। बाहर वजीर सलाउद्दीन बैबोरा और खलील के साथ पहुंचते हैं। दरवाजे पर सिपाही उन्हें रोकते हुए पूछता है, कौन हो तुम? अपना तारुफ करवाओ और हमें बताओ कि तुम एला किले में क्यों आई हो। खलील उनसे कहता है, नए आने वाले मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, वो एला किले के कमांडर से किसी खास मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। यह सुनते साथ ही दरवाजा खोल दिया जाता है और वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि गुमश्तगिन वजीर सलाउद्दीन के साथियों के साथ एला किले के खुफिया रास्ते की जानिब जा रहा होता है और वो सब तेजी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। किले के अंदर आसिफ कमांडर के साथ सायरा के पास आता है और कहता है, सलाउद्दीन आ गया है सायरा। सराय के बदवियों से रोक नहीं सके। यह सुनकर सायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त लगेगा, हमारे मेहमान को मुतला करो और मिस्र के सुल्तान को मौसूल करो कमांडर, जब तक मैं उसके भाई के साथ मामला तय करती हूँ। हमारे मेहमान को उसके बड़े भाई को उलझाने दो। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जिंदान के बाहर कराकोश बाज़ंतीनी लिबास पहनकर तलवार बोरो के गले पे ताने हुए आगे बढ़ता है। वो कुछ सिपाहियों से तो गुजर जाते हैं मगर एक सिपाही उन्हें रोक लेता है और पूछता है, तुम कैदी को कहाँ लेकर जा रहे हो? जवाबन कराकोश कहता है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मशरिक की जानिब ले जाऊं। सिपाही पूछता है, हुक्म किसने दिया तुम्हें? तो कराकोश कहता है, कमांडर अब मुझे अपना काम करने दो। सिपाही तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, खुसूसी कैदियों को सिर्फ चीफ मुहाफिज ही मुंतकिल कर सकते हैं और तुम चीफ मुहाफिज नहीं हो। ये कहते साथ वो कराकोश पे हमलावर होता है। बोरो और कराकोश उनके साथ निपटने लग जाते हैं और उन्हें आनन फानन जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसलिए में मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंचते हैं तो वो उन्हें भी पलक झपकते साथ ही मौत के घाट उतार देते हैं। मगर औरों को सामने से आता हुआ देखकर कराकोश कहता है, बोरो हमें वापस जाना होगा, हम मशरिक की जानिब नहीं जा सकते। यह सुनकर बोरो को बहुत गुस्सा आता है मगर वो कराकोश के साथ पलट जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही उनके पीछे नहीं भागते और उन्हें जाने देते हैं। बाहर वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ कमांडर के पास आते हैं तो कमांडर कहता है, हमारे महल में खुशामदीद सलाहुद्दीन। खलील गुस्से से कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन, ये मिस्र के सुल्तान की हैसियत से यहाँ हैं। कमांडर कहता है, मुझे उम्मीद है कि इस अचानक दौरे की वजह दोस्ती होगी। जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर तुम हमारे कैदियों को हमारे हवाले कर दोगे तो हालात वही होंगे जैसे कि मेरी तवक्को है। कमांडर कहता है, यहाँ कोई कैदी है तो वो हमारा है सुल्तान सलाहुद्दीन। आपको किसने बताया कि आपके कैदी यहाँ हैं? वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, मेरे साथ गड़बड़ ना करो, मैं यहाँ अच्छे तरीके से बात करने आया हूँ, कैदियों को हवाले कर दो और हम खामोशी के साथ निकल जाएंगे। कमांडर कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे आपको महल के हकीकी मालिक से मिलवाने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ आप पूछते हैं वो मेरे इख्तियार से बाहर है। वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है तो यहाँ क्यों हो? क्या तुम रिवायत नहीं जानते और हमें यहाँ दरवाजे पे खड़ा कर दिया है? मैं उससे मिलूंगा जिसके पास महल की ताकत है। कमांडर कहता है, फिर आप अकेले अंदर आएंगे? ये कहते साथ ही कमांडर वजीर सलाहुद्दीन को लेकर आगे बढ़ता है और उन्हें उस कमरे में भेज देता है। वजीर सलाहुद्दीन अंदर दाखिल होते हैं तो तख्त खाली होता है। वो पलट कर गुस्से से कहते हैं, अब मेरा वक्त जाया ना करो। मगर दरवाजा खुलता है और महिला वहाँ दाखिल होती है। महिला को देखकर वजीर सलाहुद्दीन चौंक जाते हैं और महिला तख्त पे बैठते हुए कहती है, अगर तुम इस किले में कोई अहम काम करना चाहते हो तो तुम्हें कैरिक की कौन से मिलना पड़ेगा। वजीर सलाहुद्दीन से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महिला कहती है, कैरिक किले की तरह एला किला भी मेरे मातहत है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपने हर कदम पे पाओगे। उधर रहदारी से आगे बढ़ते हुए कराकोश बोरो को दरवाजे तक ले जाता है मगर दरवाजा बंद होता है। कराकोश उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर खोल नहीं पाता। ये देखकर बोरो कहता है, इसे मुझ पे छोड़ दो। वो दरवाजा खोलने लग जाता है तो कराकोश कहता है, हमें बस इस
थकावट को दूर करना है और अपने रास्ते पर चलना है, फिर आजादी मिलेगी बोरो। काफी कोशिश के बाद बिलाखिर बोरो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, मगर उनके निकलते साथ ही सिपाहियों की एक बड़ी तादाद उन्हें घेर लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। बोरो कहता है हम जाल में फंस गए हैं, इसलिए मैं सायरा, आसिफ और कमांडर के साथ वहाँ आती है और कहती है तुम रास्ते के इख्तिताम पर पहुंच आए हो बोरो। जवाब में बोरो कहता है चलो सायरा, काफिर सिपाहियों को बेच कर ये खेल खत्म करो। सायरा कहती है फिक्र मत करो बोरो, हम इख्तिताम के करीब हैं, ये मेरा वादा पूरा करने का वक्त है, ऐसी मौत जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। बोरो पूछता है क्या बात है, क्या तुम मेरा सामना करने जा रही हो? तो सायरा कहती है मैं नहीं, एला के दो इंतहाई हुनरमंद जंगजू, अगर तुम उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो तुम क्राकोश के साथ जाने के लिए आजाद होगे। बोरो कहता है अगर मैं उन्हें शिकस्त नहीं दे सका तो क्या होगा? सायरा कहती है फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगी। बोरो कहता है चाहे मैं जीतूं या हारूं, क्राकोश यहाँ से निकल कर जाएगा, अगर कोई मरेगा तो वो मैं हूँगा। मगर सायरा कहती है तुम ये सब कहने की हालत में नहीं हो, काफी बातें होंगी, अब तलवारों को बोलने दो। ये कहते साथ ही सायरा बुलंदी पर जाकर बैठ जाती है और उसके हुक्म पर एक जंगजू आगे बढ़ता है जिसके पास एक बड़ा खतरनाक कुल्हाड़ा होता है, लेकिन उसकी सेहत उस कुल्हाड़े से काफी ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। वो घूरते हुए बोरो की जानिब बढ़ता है तो क्राकोश कहता है नेजाबाज, तुम जानते हो कि क्या करना है पागल भेड़िए। बोरो कहता है लंबा है, लेकिन अगर मैं इसके दिफा को तोड़कर इस तक पहुंच जाऊं। क्राकोश उसे थपकी देते हुए कहता है तो ये खत्म हो जाएगा। ये सुनते साथ ही बोरो आगे बढ़ता है। वो जंगजू पहला हमला ही बहुत ज्यादा खतरनाक करता है, बोरो से बचता है और उसका दूसरा वार रोक लेता है। अंदर वजीर सलाउद्दीन मैला से कहते हैं हमारे दरमियान कहने को कुछ नहीं बचा, क्राकोश और बोरो को हवाले करो, हम चले जाएंगे। मैला कहती है इतना आसान नहीं सलाउद्दीन, तुम्हारा भाई मेरे किले में घुस आया और मेरे एक गुलाम को भाई ले जाने की कोशिश की। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं क्राकोश हमारा है, क्या उसकी बरसों की कैद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम कीमत बताओ, हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। मैला कहती है जो कीमत अदा करनी है वो तावान से कहीं ज्यादा है। कुछ में कहानी सुनाने के बाद मारिया कहती है आज के लिए कहानियां काफी हैं, मगर शहजादा कहता है बराए करम मुझे मजीद सुनाई एक और कहानी। तो मारिया उसे कहानी सुनाती है, एक नौजवान बादशाह की कहानी, लेकिन उसकी बहादुरी बड़ी है, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? शहजादा हाँ करता है और मारिया कहानी सुनानी शुरू करती है। कम उम्र की वजह से उन्होंने कभी उस बच्चे पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, तख्त पर चढ़ने से लेकर जिसका वो हकदार था। यह सुनकर बाल्डोन परेशान, उसमें सबेला परेशान होते हुए बालेन और विलियम से कहती है उन्होंने शहजादे की बीमारी को ये कहकर इस्तेमाल किया कि वो बादशाह बनने के लायक नहीं है। ये कहते साथ ही सबेला उनके साथ बैठ जाती है। उधर बाल्डोन मारिया से पूछता है बच्चे ने क्या किया? तो मारिया कहती है उसे क्या करने की जरूरत है, अपने बाबा की मिरास के लिए और तख्त के लिए उसने लड़ने को तरजीह दी। ये सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। एला के लिए में वजीर सलाउद्दीन मैला से कहते हैं बोरो को मेरे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करो, याद करो कि जब कुछ की फौजें मेरे दरवाजे पर आई थी मैंने तुम्हें इनके हवाले नहीं किया। मैला खड़े होकर कहती है काश तुम ऐसा करते, तुमने शमसा के सामने मेरी जो बेइज्जती की थी ये उससे कहीं बदतर थी। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मैंने तुम्हारी तौहीन नहीं की। मैला कहती है तुमने मेरी बहुत तौहीन की है, मैंने अपने अंदर एक तूफान महसूस किया जिसने मेरे तमाम जज्बात का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। मैं तुम्हारे कैदियों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। फिर तख्त पर बैठते हुए मजीद कहती है अगर तुम वाकई उन्हें लेना चाहते हो तो अपनी फौज जमा करो और मेरा सामना करो। बाहर गुमिश्तकिन वजीर सलाउद्दीन के साथियों के साथ खुफिया रास्ते तक पहुंच जाता है और दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को आता हुआ देखकर वो सब एकदम से चुप जाते हैं, मगर उनके करीब पहुंचते साथ ही वो उन्हें काट डालते हैं। सहन में बोरो जंगजू पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है, उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। हमलावर बोरो को जमीन पे गिराने में कामयाब हो जाता है। ये देखते हुए कमांडर कहता है बोरो इतना अच्छा जंगजू नहीं है जितना मैंने सुना था। तो सायरा कहती है कमांडर देखें, बोरो फुर्ती से कई बार कुल्हाड़े के नीचे से निकल जाता है। अंदर वजीर सलाउद्दीन मैला से कहते हैं तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पेशकश ठुकरा दी, क्या ऐसा है? तो मैला कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली, मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ और कहाँ खड़ी हूँ। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं इंसान अपने दावा से हार जाता है और तुम मोहब्बत का दावा कर रही थी। आशिक वफा करने वाला शख्स होता है, लेकिन तुम नफरत की बींट चढ़ गई हो। ये सुनते साथ ही मैला गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहती है कैरी को रहला किला तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी तरफ देखो सलाउद्दीन, मेरी हालत देखो, गौर से देखो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जिस इश्क ने मेरे अंदर जलकर मुझे जलाया वो खुदा का मौजज़ा था, लेकिन अब इस आग से जो कुछ बचा है वो राख, बुग़्ज़, गुस्सा और नफरत है। ये तुम्हारा असर है। राहदारी में गुमिश्तकिन वजीर सलाउद्दीन के साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ लाशें पड़ी देखकर इदरीस कहता है ऐसा लगता है कि चीजें यहाँ पेचीदा हो गई हैं। तो इदरीस कहते हैं लगता है बोरो साहब यहाँ से निकल गए हैं। बुजुर्ग पूछता है हम मुकाम कैसे तलाश करेंगे? इसलिए मैं बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पे हमला कर देते हैं और वो उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे जिंदान में अली और तुराब कैद होते हैं। एक मुआफिस वहाँ पे आता है तो अली उसे दबोच लेता है। तुराब उसके कपड़ों से चाबी निकालता है और अली उसे मार डालता है। वो दोनों जिंदान खोलकर बाहर आते हैं और तुराब तलवार उठा लेता है। फिर वो दोनों एक तरफ निकल पड़ते हैं। सहन में जंगजू उल्टा नेजा बोरो को दे मारता है और फिर उसे जमीन पे गिरा देता है। यह देखकर बाज़ंतीनी सिपाही नारे बुलंद करते हैं मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो, मार डालो। बोरो को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर सायरा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि बोरो को देखते हुए क्राकोश कहता है बराए मेहरबानी उठो बोरो, हिम्मत ना हारो, उठो। बोरो बहुत तकलीफ में दिखाई देता है और जंगजू चीखते चिल्लाते हुए अपनी फतह का ऐलान करता है। क्राकोश चिल्ला रहा होता है उठो बोरो उठो। वो जंगजू जैसे ही बोरो को मारने लगता है बोरो उसका कुल्हाड़ा पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर से जमीन पे पटक देता है, मगर वो जंगजू फिर से उठता है और कुल्हाड़ा उठा लेता है। बोरो भी उसके हमले से बचते हुए तलवार उठा लेता है। जंगजू फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बोरो इस बार उसे काट डालता है। दो तलवारें लगने की वजह से वो जंगजू घुटनों के बल गिर जाता है। ये देखकर क्राकोश खुश होते हुए कहता है शाबाश पागल भेड़िए, शाबाश। सायरा भी खुश होते हुए कमांडर से कहती है कमांडर मैंने तुमसे कहा था। बोरो जंगजू के गले पे तलवार रखते हुए कहता है दूसरे को भेजो। ये कहते साथ ही उसका गला काट के उसे ढेर कर देता है। जवाब न मिलने पर बोरो चिल्लाते हुए कहता है चलो भेजो उसे। तो सायरा खड़े होते हुए कहती है ये जंगजू दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी शोहरत इस्लाम की फौजों से लेकर सुलभी फौजियों तक फैली हुई है। उसने यमन से फ्रांक सरजमीनों पर हमला किया। वो एक दलेर फातेह है। हम देखते हैं कि वो जंगजू एक नोकदार आले को घसीटते हुए वहाँ पे आता है। उसे देखकर बोरो और क्राकोश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि क्राकोश का साथी गुगबोरो होता है, जो शदीद गुस्से में बोरो की जानिब देख रहा होता है। बोरो खुश होते हुए उसे पुकारता है गुगबोरो तुम जिंदा हो। क्राकोश भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मगर गुगबोरो गुस्से और नफरत में उन्हें देख रहा होता है। सायरा बुलंद आवाज से कहती है ये रहा तुम्हारा दुश्मन फातेह गुगबोरो।
बोरो आसमानी भेड़िया बामुकाबला पागल भेड़िया। यह सुनकर बोरो को एक जोरदार धचका लगता है और वो उसे देखते ही चला जाता है। राहदारी में तमाम काफिर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए अमी अली और तुराब वहाँ पहुंचते हैं। एचएस उनसे पूछते हैं तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? तुराब कहता है हम नहीं जानते, उन्होंने हमें मुख्तलिफ जगह पे रखा था। एक जख्मी सिपाही को दबोचते हुए गुमश्तगिन पूछता है नया कैदी कहाँ है? तो सिपाही कहता है अखाड़े में। गुमश्तगिन पूछता है वो अखाड़े में क्या कर रहा है? मगर इसके साथ ही सिपाही की सांसें थम जाती हैं। एचएस कहते हैं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। सेल में बोरो गुकबोरो से पूछता है तुम हमें अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो गुकबोरो? कराकोश कहता है क्या हम इतने बदल गए हैं? देखो हमारा जान से प्यारा भाई बोरो हमें बचाने आया है। बोरो सायरा की जानिब देखते हुए कहता है तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है सायरा, तुम जिस आदमी को मेरे मुखालिफ लाई हो वो मेरी जान से प्यारा मेरा भाई है। सायरा कहती है तुम इसके बारे में इतना यकीन ना करो। बोरो पलटता है तो गुकबोरो उस पे हमला कर देता है। ये देखकर बोरो चौंक जाता है और गुकबोरो कहता है भाईचारा कुर्तबा में मर गया, अब तुम्हारी बारी है। बोरो से कहता है तुम क्या कह रहे हो गुकबोरो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देखो दुश्मन हमें अतराफ से घेरे हुए हैं और मिलकर लड़ते हैं और इस कैद को खत्म कर डालते हैं। गुकबोरो गुस्से से कहता है मैंने एक बार ये गलती की थी और उसकी कीमत चुकाने में अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए, अब अपने खोए हुए सालों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ वो फिर से बोरो पे हमलावर होता है। बोरो इस बार उसे लात मार के पीछे धकेल देता है और कहता है अल्लाह के वास्ते गुकबोरो क्या तुम अपनी अकल खो चुके हो? तुम मुझ पर हमला कैसे कर सकते हो? तो गुकबोरो से कहता है जैसे तुमने मेरे साथ किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बताया कि गार में माले गनीमत है और तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया। मैंने वहां पे अपने तमाम सिपाहियों को खो दिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उन्हें हर रात अपने ख्वाबों में देखता हूँ। ये कहते साथ वो फिर से बोरो पे हमलावर होता है। तो कराकोश पूछता है बोरो क्या ये सच है? बोरो चिल्लाते हुए कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या तुम्हारे लिए मैंने अपने मददगार नहीं भेजा था? गुकबोरो गुस्से से कहता है इनकार ना करो, तुम मुझे भाईचारे की कहानियां सुना रहे हो जबकि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। तुम अपने मकसद तक पहुंच गए हो लेकिन तुम्हारा दौर खत्म हो गया है। हमारे दरमियान सारा हिसाब किताब यहीं पे तय होगा। ये कहते साथ वो फिर से हमला कर देता है। कुछ हमलों से तो वो बचता है मगर आखिरकार गुकबोरो हथनी उसके पेट में दे मारता है और हथियार के जरिए उसकी तलवार दूर गिरा देता है। ये देखकर कराकोश चिल्लाते हुए कहता है गुकबोरो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इसलिए मैं गुमश्तगिन वज़ीर सलाउद्दीन के साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखते साथ ही आसिफ कमांडर और सायरा खड़े हो जाते हैं। कमांडर चिल्लाते हुए कहता है हमला करो हमला। यह सुनते साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन के साथी और गुमश्तगिन बजंतनी सिपाहियों पे टूट पड़ते हैं और उन्हें काटते ही चले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद एचएस इदरीस और इब्राहिम से कहते हैं चलो यहाँ धुआं छोड़ो, जल्दी करो। ये कहते साथ वो आग लगाकर बजंतनियों के सामने धुआं फैला देते हैं। अंदर महिला वज़ीर सलाउद्दीन से कहती है मैं तुम्हें कैदी तो नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए सलाउद्दीन। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं फैसला तुम्हारा है, हमारे दरमियान का माजी अब खत्म हो चुका है। जब मैं अपनी फौज के साथ कैरिक के लिए पहुंचूंगा मुझसे रहम की उम्मीद हरगिज मत करना। इसलिए मैं सिपाही भागता भागता आता है और महिला से कहता है कौन से किले में अफरा तफरी मच गई है, हम पर हमला हुआ है। यह सुनकर महिला गुस्से में वज़ीर सलाउद्दीन को देखने लग जाती है। वज़ीर सलाउद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं जो चाहूंगा जल्द या बदेर ले लूंगा। महिला के कहने पर सिपाही वज़ीर सलाउद्दीन पे हमला करने लगता है कि वज़ीर सलाउद्दीन पल भर में उसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं और फिर कहते हैं आइंदा कभी मेरे सामने मत आना महिला, कभी भी नहीं। ये कहते साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन फातिहाना अंदाज में रवाना हो जाते हैं और महिला की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बाहर बोरो काफिर को काट रहा होता है। एचएस गुमश्तगिन और दीगर तलवारें तेजी से चला रहे होते हैं। काफिर कटते मरते चले जाते हैं। अली और तुराब भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। कराकोश भी काफिर को काटते ही चला जाता है मगर गुकबोरो एक जानिब खड़ा होता है। एचएस बजंतनियों को काटते हुए कहते हैं बोरो साहब कराकोश को लेकर चलें। गुमश्तगिन भी कहता है चलो चलें मगर बोरो कहता है गुकबोरो कहाँ है, मैं उसके बगैर नहीं जा सकता। एचएस कहते हैं अभी उसे छोड़े बोरो साहब, उसका ज़हन वाज़ेह तौर पर होश आवास में नहीं है, हमें अभी जाना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। उधर सायरा महिला के पास जाती है और उसे कहती है सलाउद्दीन के आदमी किले के अंदर है, हमें अभी निकल जाना चाहिए। जवाब में महिला कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सलाउद्दीन को इस किले से बाहर नहीं जाने दे सकती। सायरा कहती है वो लड़ रहे हैं कौन, हमें जल्द अज जल्द निकलना होगा। महिला से रोकते हुए पूछती है क्या तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें शमसा के बारे में करने को कहा था? तो सायरा कहती है बिल्कुल, आपने जिस लड़की को भेजा था वो शमसा की खादमा बन गई है। महिला कहती है बहुत खूब, उसे खबर करो कि जल्दी करे, पहले वो अपनी आवाज जिससे वो सबको अपनी तरफ माइल करती है उसके बाद अपनी जान भी खो देगी। ये कहते और सुनते साथ वो दोनों निकल शमसा खवातीन को मौसीकी सिखा रही होती है। तो उसकी खादमा उससे कहती है सुल्ताना सच कहूँ तो आप जैसे बासलाहियत फनकार की खिदमत करना वाकई मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। जवाब में शमसा कहती है आप जैसे फन में दिलचस्पी रखने वाले तलबा का मौजूद होना दरअसल मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। लैला खादमा की जानिब देखते हुए शमसा खातून के कान में कहती है आप इसके साथ बहुत शफकत से पेश आती हैं। तो शमसा खातून उससे कहती है हसद ना करो। इसके साथ ही शमसा आराम करने की गर्ज से चली जाती है और खादमा यानी कि जमर्द उसके पीछे पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि एला किले से निकलने के बाद वज़ीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ बाकी साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में गुमश्तगिन बाकी साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। बोरो को पकड़ते हुए वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तो बोरो कहता है आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह आपसे राजी हो। वज़ीर सलाउद्दीन उससे कहते हैं वापस पहुंचने पर हम बात करेंगे, तुम्हें अपनी जिद्दीपन को छोड़ना होगा। फिर कराकोश से कहते हैं कराकोश मुबारक हो, अल्लाह हमें हमेशा कैद से बचाई। तो कराकोश कहता है मैंने उम्मीद खो दी थी मगर आप खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंच गए, हम आपका हक अदा नहीं कर सकते। वज़ीर सलाउद्दीन उससे कहते हैं तुम्हारा हम पर कोई कर्ज नहीं है लेकिन उम्मत तुमसे खिदमत की तवक्को रखती है, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। फिर बोरो को परेशान देखकर पूछते हैं बोरो क्या हुआ, हमने मकसद हासिल तो कर लिया है, परेशान क्यों हो? जवाब में बोरो कहता है गुकबोरो वहीं पर रुक गया। वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं क्या वो भी किले में था, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई? बोरो परेशान होते हुए कहता है लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं चलें गुमश्तगिन अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। ये कहते सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। कुछ में लतीफ बालिन से कहता है आप जल्दी कुछ के बादशाह बनेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आबाओ अजदाद की तरह गलतियों में पड़े बगैर एक आदिल हुक्मरान बनेंगे।
بالین کہتا ہے مجھے امید ہے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لطیف اسے کاغذ دیتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کاغذ پر شہزادے کی ادویات تفصیل سے لکھ دی ہیں۔ بالین کاغذ دے کر پڑھتا ہے جبکہ چاتیون کا کمانڈر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لطیف کہتا ہے شہزادی کی صحت کی خاطر آپ کو دوا کے مواد کی اچھی طرح حفاظت کرنی ہوگی۔ تو بالین کہتا ہے تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، فکر نہ کرو۔ چاتیون کا کمانڈر انہیں دیکھنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ شام میں وزیر صلاح الدین قاضی فاضل اور عمر ملا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں میرے سلطان بدقسمتی سے گمشتگین کا پھیلایا گیا بہتان ہم سے پہلے بغداد پہنچ گیا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں خلیفہ حضرت ایسے شخص نہیں ہے جو ان کی باتوں پر دھیان دھریں گے، وہ ہمیں اچھے سے جانتے ہیں۔ جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں میں نے انہیں تفصیل سے معلومات دی ہیں لیکن شک ان کے دل میں بیٹھ چکا ہے۔ انہوں نے مصر میں آپ کی نئی حکومت کو سراہا ہے لیکن واضح طور پر نائب کے عہدے کے موضوع پر آپ کی حمایت کے لیے فرمان لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر عمر ملا اور وزیر صلاح الدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وزیر صلاح الدین کہتے ہیں پھر رہنے دیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس لیے کرتگن زخمی بازو کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ وزیر صلاح الدین اس سے پوچھتے ہیں تمہارے بازو کو کیا ہوا؟ تو کرتگن کہتا ہے ہم نے تقریباً اس آدمی کو پکڑ لیا تھا لیکن انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ ہم بہتان لگانے والے سے اعتراف کروانے والے تھے لیکن ہم نے اسے کھو دیا۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں کیا ان میں سے کسی کا چہرہ دیکھا؟ جواباً کرتگن کہتا ہے نہیں، وہ بہت زیادہ تھے لیکن یہ واضح ہے کہ یہ اسی چمکیلے کے آدمی تھے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین اور باقیوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ کچھ میں لطیف شہزادے کے کمرے میں آتا ہے مگر وہاں شہزادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک طرف سے چاتیون تلوار گھسیٹتے ہوئے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے پرنس بالڈون ٹھیک ہو گئے ہیں۔ لطیف اسے کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس چیز کے پیچھے ہو؟ جواب میں چاتیون کہتا ہے میں بیمار ہوں اور میں شفا کی تلاش میں ہوں۔ باہر بادشاہ کے وفادار سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوتے ہیں اور چاتیون کا کمانڈر ان کے بیچوں بیچ ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اندر لطیف خنجر نکالتا ہے تو چاتیون کہتا ہے نہیں شفا دینے والے نہیں، تم جانتے ہو یہ چیزیں تمہارے ہاتھ میں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ لطیف اس پہ حملہ کرتا ہے مگر چاتیون اس کا بازو پکڑتا ہے اور جیسے ہی حملہ کرنے لگتا ہے لطیف اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر چاتیون ہنستے ہوئے تلوار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ آؤ آؤ۔ تو لطیف کہتا ہے تم اتنے لالچی ہو کہ ایک معصوم بچے کی دوائی لینا چاہتے ہو۔ چاتیون اسے کہتا ہے اور تم اتنے مہربان ہو کہ تم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہو۔ لطیف خنجر سے اس پہ بہت سے حملے کرتا ہے مگر چاتیون اسے دبوچ لیتا ہے اور لطیف کا خنجر ہی اس کے پیٹ میں گھوم دیتا ہے۔ پھر زور بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ضرورت سے زیادہ رحم دلی زندگی کو مختصر کر دیتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ظالم چاتیون خنجر اس کے جسم میں ٹھوک دیتا ہے۔ لطیف زمین پہ گرتا ہے اور شہادت انجام پاتا ہے۔ چاتیون ہاتھ میں موجود ولیم کی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہتا ہے او ولیم ولیم ولیم۔ یہ کہتے ساتھ وہ انگوٹھی لطیف کے ساتھ رکھ دیتا ہے، پھر اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ادھر ماریا بالڈون کو لے کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بالڈون سے کہتا ہے مجھے باہر گھومنا بہت یاد آتا ہے۔ تو ماریا کہتی ہے کبھی کبھی ہمیں بہادر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اگر ہم اسے تمہارے حکیم یا شہزادی سبیلا پر چھوڑ دیتے تو تم ابھی بستر پہ لیٹے ہوتے۔ میں نے تمہیں ایک کہانی سنائی تھی، اگر تمہیں یاد ہو، اس بچے بادشاہ کی کہانی جس پر کسی کو اعتبار نہیں تھا۔ بالڈون کہتا ہے بالکل، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے انجام کا نہیں بتایا۔ ماریا کہتی ہے اس نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کے نتیجے میں وہ بڑا بادشاہ بن گیا، تمام دشمن اس کے سامنے ایک ایک کر کے جھک گئے۔ تمہیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا بالڈون، کیا تم اپنے بستر پر واپس جا کر سرماؤں کی کہانیاں سن کر سوتے رہو گے یا اس کہانی کی طرح ایک عظیم بادشاہ بنو گے؟ یہ سنتے ساتھ ہی بالڈون سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ شام میں کیماس گمشتگن سے پوچھتا ہے اعلیٰ میں کیا آپ کو وہ چیز مل گئی جو آپ ڈھونڈ رہے تھے گمشتگن؟ جواباً گمشتگن کہتا ہے فکر نہ کرو امیر کیماس، میں اسے اس دن کے لیے برسوں سے تیار کر رہا ہوں۔ ہم اب رائے دہی کے لیے میز پر ایک اضافی نشست شامل کریں گے۔ امیر کیماس کہتا ہے تمہارے فتنے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گمشتگن۔ اس لیے میں وزیر صلاح الدین اور باقی سب وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اصفہانی ان کے بیچ آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ میں بالین اور سبیلا سے ولیم کہتا ہے ایبلن کے کونت بالین اور کچھ کے بادشاہ کی شہزادی سبیلا، آپ ان قریب اپنی زندگی کو میاں بیوی کے بندھن میں باندھیں گے۔ یہ شادی نہ صرف آپ کی زندگی کو یکجا کرے گی بلکہ ساتھ ہی یہ کچھ کے نئے بادشاہ کا تعین بھی کرے گی۔ لاڑکائی چاتیون اور باقی سب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ولیم مزید کہتا ہے بادشاہ مارلے کا تاج آپ کی بادشاہی کا اعلان کرے گا۔ اس لیے میں ماریا کے ساتھ وہاں آنے والا بالڈون کہتا ہے جلدی مت کرو ولیم، میں بادشاہ مارلے کا بیٹا شہزادہ بالڈون ہوں، میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں تخت پر اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر سبیلا، بالین اور ولیم چونک جاتے ہیں۔ ماریا کہتی ہے آپ کے خوبصورت دن پر اس طرح خلل ڈالنے پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ کونت بالین اور ولیم کو ہمارے مستقبل کے بادشاہ بالڈون کے حکیم کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر ولیم، سبیلا اور بالین کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ شام میں اصفہانی کہتے ہیں آج اس دیوان میں جو فیصلہ ہوگا یہ ریاست کی بقا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تخت کے نائب کا چناؤ ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی ایسا ہے جو اپنا فیصلہ بدلنا چاہتا ہو؟ مگر کوئی بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، 4-4 برابر۔ یہ دیکھ کر اصفہانی کہتے ہیں نتیجہ پہلے کی طرح ہی ہے، اور ایسی صورت میں تو گمشتگن ایک دم سے کہتا ہے وزیر حضرت یہ پہلے کی طرح نہیں ہے، ایک ووٹ لاپتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میز پر ایک اور نشست شامل کریں۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ زنگی ریاست کے سرحدوں کے اندر ہر وہ شخص جسے ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ یہاں موجود ہے، تو پھر آپ کا مطلب کون ہے؟ گمشتگن کہتا ہے وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا، حکم اور فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نشست اور انتخابی نشانات وہاں پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ سب لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ آنے والا شخص ہے تو ہے کون؟ قائرہ میں شمسہ ہار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب وزیر صلاح الدین نے اسے یہ ہار پہنایا تھا۔ اس خیال کے بعد شمسہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اس لیے زمرد وہاں پہ کچھ دوا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے میں نے آپ کی بیماری کے لیے جڑی بوٹیوں کے مرکب سے دوا تیار کی ہے شمسہ خاتون، شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن ہمیں پھر بھی ضروری احتیاط کرنی چاہیے۔ تو شمسہ اسے کہتی ہے تمہارا اس قدر اچھی سوچ کے لیے شکریہ، تم نے میرے لیے بہت محنت کی ہے، تم نے مرکب میں کیا ڈالا ہے، میں اسے کیسے استعمال کروں؟ تو زمرد کہتی ہے میری دادی جڑی بوٹیوں کی ماہر تھیں، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائی، انہوں نے مجھے تمام جڑی بوٹیوں کے بارے میں سکھایا تھا، میں نے ان سے زہر اور تریاق سیکھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ شمسہ کو دوا دے دیتی ہے اور شمسہ دوا پی لیتی ہے۔ زمرد خوش ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوان میں کوئی اور نہیں بلکہ گوگبورو داخل ہوتا ہے، جسے دیکھ کر بورو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وزیر صلاح الدین بھی اسے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گوگبورو کہتا ہے میں اربیل صاحب علی کوچک کا وارث مظفر الدین گوگبورو ہوں، جسے مردہ سمجھا گیا، جس کے حقوق چھین لیے گئے اور جس کی زندگی غداری کی سازشوں سے برباد ہو گئی، وہ گوگبورو ہوں۔ وہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں برتتا، یہی اس اللہ کی حکمت ہے۔ وقت بدل گیا ہے، جس کے لیے میں نے خون بہایا
اور جس نے مجھے بلا دیا اس ریاست کی تقدیر اب میری مٹھی میں ہے، اب فیصلہ مظلوموں کے لیے ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھتا ہے اور ایک دم سے تسبیح اٹھا لیتا ہے۔ بازی پلٹ جاتی ہے، گمشتگن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بورو غصے میں گگبورو کی جانب بڑھنے لگتا ہے مگر قاضی فاضل اسے روک لیتے ہیں۔ عمر ملا، اصفہانی، وزیر احمد سب کے سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اصفہانی کہتے ہیں اربیل کے وارث کو ہمارے دیوان میں رائے دہی کا حق حاصل ہے، اس کے ووٹ سے سعد الدین گمشتگن سلطان صالح اسماعیل کے تخت کے نائب مقرر کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ناظرین، جب تک کہ شہزادہ اسماعیل بڑا نہیں ہو جاتا گمشتگن ہی سلطان ہے، حکم اسی کا ہے، فیصلہ اسی کا ہے۔ سلطان کی وصیت میں خیانت کرنے والا گمشتگن یعنی کہ نائب یہاں پہ صلاح الدین ایوبی ہوتے اور ساتھ میں یاروکی کا قاتل گمشتگن نائب مقرر ہو گیا ہے۔ اصفہانی مزید کہتے ہیں اللہ نے ہماری ریاست اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کا وسیلہ بنائی۔ نائب بنتے ساتھ ہی گمشتگن بول پڑتا ہے ہر کوئی سن لے اور جان لے کہ تخت کے نائب اور سلطان صالح اسماعیل کے نام سے یہ میرا پہلا فیصلہ ہے، پہلا فیصلہ ریاست کی سلامتی اور قیادت کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے زنگیوں کے ملک پر لالچ کی نظر رکھنے والے صلاح الدین ایوبی کے لیے شام کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین بہت غصے میں گمشتگن کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ گمشتگن مزید کہتا ہے فیصلے پہ عمل فوری کیا جائے۔ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔